احبار پہلا باب۔ اور خداوند نے خیمہ اجتماع میں سے موسیٰ کو بلا کر اس سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم میں سے کوئی خداوند کے لیے چڑھاوا چڑھائے تو تم چوپایوں یعنی گائے، بیل اور بھیڑ بکری کا چڑھاوا چڑھانا۔ اگر اس کا چڑھاوا گائے بیل کی سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لا کر اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر چڑھائے، تاکہ وہ خداوند کے حضور مقبول ٹھہرے، اور وہ سوختنی قربانی کے جانور کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے، تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا، تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو۔ اور وہ اس بچڑے کو خداوند کے حضور ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں خون کو لا کر اسے اس مذبح پر گردا گرد چھڑکیں جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر ہے۔ تب وہ اس سوختنی قربانی کے جانور کی کھال کھینچے اور اس کے عضو کو کاٹ کر جدا جدا کرے۔ پھر ہارون کاہن کے بیٹے مذبح پر آگ رکھیں اور آگ پر لکڑیاں ترتیب سے چن دیں، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے اعضاء کو اور سر اور چربی کو ان لکڑیوں پر جو مذبح کی آگ پر ہوں گی ترتیب سے رکھ دیں، لیکن وہ اس کی انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھو لے۔ تب کاہن سب کو مذبح پر جلائے کہ وہ سوختنی قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہو۔ اور اگر اس کا چڑھاوا ریوڑ میں سے بھیڑ یا بکری کی سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لائے، اور وہ اسے مذبح کی شمالی سمت میں خداوند کے آگے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے خون کو مذبح پر گردا گرد چھڑکیں۔ پھر وہ اس کے عضو کو اور سر اور چربی کو کاٹ کر جدا جدا کرے، اور کاہن ان کو ترتیب سے ان لکڑیوں پر جو مذبح کی آگ پر ہوں گی چن دے، لیکن وہ آنتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھو لے۔ تب کاہن سب کو لے کر مذبح پر جلا دے۔ اور سوختنی قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے۔ اور اگر اس کا چڑھاوا خداوند کے لیے پرندوں کی سوختنی قربانی ہو تو وہ کمریوں یا کبوتر کے بچوں کا چڑھاوا چڑھائے، اور کاہن اس کو مذبح پر لا کر اس کا سر مروڑ ڈالے اور اسے مذبح پر جلا دے، اور اس کا خون مذبح کے پہلو پر گر جانے دے، اور اس کے پوٹے کو آلیش سمیت لے جا کر مذبح کی مشرقی سمت میں راکھ کی جگہ میں ڈال دے، اور وہ اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اسے چیرے پر الگ الگ نہ کرے۔ تب کاہن اسے مذبح پر ان لکڑیوں کے اوپر رکھ کر جو آگ پر ہوں گی جلا دے۔ وہ سوختنی قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے۔ دوسرا باب۔ اور اگر کوئی خداوند کے لیے نذر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو اپنے چڑھاوے کے لیے میدا لے، اور اس میں تیل ڈال کر اس کے اوپر لبان رکھے، اور وہ اسے ہارون کے بیٹوں کے پاس جو کاہن ہیں لائے، اور تیل ملے ہوئے میدا میں سے اس طرح اپنی مٹھی بھر کر نکالے کہ سب لبان اس میں آ جائے۔ تب کاہن اسے نذر کی قربانی کی یادگاری کے طور پر مذبح کے اوپر جلائے۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہوگی، اور جو کچھ اس نذر کی قربانی میں سے باقی رہ جائے وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا۔ یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے پاک ترین چیز ہے۔ اور جب تو تنور کا پکا ہوا نذر کی قربانی کا چڑھاوا لائے
तो वो तेल मिले हुए मैदा के बेखमीरी गिरदे या तेल चोपड़ी हुई बेखमीरी चपातियां हों। और अगर तेरी नजर की कुर्बानी का चढ़ावा तवे का पका हुआ हो, तो वो तेल मिले हुए बेखमीरी मैदा का हो। उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना, और वो नजर की कुर्बानी होगी। और अगर तेरी नजर की कुर्बानी का चढ़ावा कड़ाही का तला हुआ हो, तो वो मैदा से तेल में बनाया जाए। तू इन चीजों की नजर की कुर्बानी का चढ़ावा खुदावंद के पास लाना, और काहन को दिया जाए, और वो उसे मज़बा के पास लाए। और काहन उस नजर की कुर्बानी में से उसकी यादगारी का हिस्सा उठाकर मज़बा पर जलाए। ये खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी होगी। और जो कुछ उस नजर की कुर्बानी में से बच रहे, वो हारून और उसके बेटों का होगा। ये खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियों में पाक तरीन चीज है। कोई नजर की कुर्बानी जो तुम खुदावंद के हजूर चढ़ाओ, वो खमीर मिलाकर ना बनाई जाए। तुम कभी आतिशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर खमीर या शहद ना जलाना। तुम इनको पहले फलों के चढ़ावे के तौर पर खुदावंद के हजूर लाना, पर राहत अंगेज खुशबू के लिए वो मज़बा पर ना चढ़ाए जाएं। और तू अपनी नजर की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना, और अपनी किसी नजर की कुर्बानी को अपने खुदावंद के अहद के नमक बगैर न रहने देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। और अगर तू पहले फलों की नजर का चढ़ावा खुदावंद के हजूर चढ़ाए, तो अपने पहले फलों की नजर के चढ़ावे के लिए अनाज की भुनी हुई बालें, यानी हरी हरी बालों में से हाथ से मलकर निकाले हुए अनाज को चढ़ाना, और उसमें तेल डालना, और उसके ऊपर लुबान रखना, तो वो नजर की कुर्बानी होगी। और काहन उसकी यादगारी के हिस्सा को, यानी थोड़े से मलकर निकाले हुए दानों को, और थोड़े से तेल को, और सारे लुबान को जला दे। ये खुदावंद के लिए आतिशीन कुर्बानी होगी। तीसरा बाब। और अगर उसका चढ़ावा सलामती का ज़बीहा हो, और वो गाय बैल में से किसी को चढ़ाए, तो खा वो नर हो या मादा, पर जो बेऐब हो, उसी को वो खुदावंद के हजूर चढ़ाए। और वो अपना हाथ अपने चढ़ावे के जानवर के सिर पर रखे, और खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर उसे ज़िबा करे, और हारून के बेटे जो काहिन हैं, उसके खून को मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़कें। और वो सलामती के ज़बीहा में से खुदावंद के लिए आतिशीन कुर्बानी गुजराने, यानी जिस चर्बी से आंतड़ियां ढकी रहती हैं, और वो सारी चर्बी जो आंतड़ियों पर लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों समेत, इन सबों को वो जुदा करे। और हारून के बेटे उन्हें मज़बा पर सौख्तनी कुर्बानी के ऊपर जलाएं, जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर हैं। ये खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी है। और अगर उसका सलामती के ज़बीहा का चढ़ावा खुदावंद के लिए भेड़ बकरी में से हो, तो खा वो नर हो या मादा, पर जो बेऐब हो, उसी को वो चढ़ाए। अगर वो बर्रा चढ़ाता हो, तो उसे खुदावंद के हजूर चढ़ाए, और अपना हाथ अपने चढ़ावे के जानवर के सिर पर रखे, और उसे खैमाए इज्तिमा के सामने ज़िबा करे, और हारून के बेटे उसके खून को मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़कें। और वो सलामती के ज़बीहा में से खुदावंद के लिए आतिशीन कुर्बानी गुजराने, यानी उसकी पूरी चर्बी भरी दुम को वो रीढ़ के पास से अलग करे, और जिस चर्बी से आंतड़ियां ढकी रहती हैं,
और वो सारी चर्बी जो आंतड़ियों पर लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों समेत, इन सबों को वो अलग करे, और काहिन इन्हें मज़बा पर जलाए। ये उस आतिशीन कुर्बानी की ग़ज़ा है जो खुदावंद को गुजरानी जाती है। और अगर वो बकरा या बकरी चढ़ाता हो तो उसे खुदावंद के हजूर चढ़ाए, और वो अपना हाथ उसके सिर पर रखे और उसे खैमाए इज्तिमा के सामने ज़िबा करे, और हारून के बेटे उसके खून को मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़कें, और वो उसमें से अपना चढ़ावा आतिशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने, यानी जिस चर्बी से आंतड़ियां ढकी रहती हैं, और वो सब चर्बी जो आंतड़ियों पर लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों समेत, इन सबों को वो अलग करे, और काहिन इनको मज़बा पर जलाए। ये उस आतिशीन कुर्बानी की ग़ज़ा है जो राहत अंगेज खुशबू के लिए होती है। सारी चर्बी खुदावंद की है। ये तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में नस्ल दर नस्ल एक दायमी कानून रहेगा कि तुम चर्बी या खून मुतलिक ना खाओ। अहबार चौथा बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि अगर कोई उन कामों में से जिनको खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे और उससे नादानिस्ता खता हो जाए, अगर काहिन ममसू ऐसी खता करे जिससे कौम मुजरिम ठहरती हो, तो वो अपनी उस खता के वास्ते जो उसने की है एक बेऐब बछड़ा खता की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने। वो उस बछड़े को खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर खुदावंद के आगे लाए, और बछड़े के सिर पर अपना हाथ रखे और उसको खुदावंद के आगे ज़िबा करे, और वो काहिन ममसू उस बछड़े के खून में से कुछ लेकर उसे खैमाए इज्तिमा में ले जाए, और काहिन अपनी उंगली खून में डबो डबो कर और खून में से ले लेकर उसे मकदस के पर्दा के सामने 7 बार खुदावंद के आगे छिड़के, और काहिन उसी खून में से खुशबूदार बखूर जलाने की कुर्बानगाह के सींगों पर जो खैमाए इज्तिमा में है खुदावंद के आगे लगाए, और उसे और उस बछड़े के बाकी सब खून को सौख्तनी कुर्बानी के मज़बा के पाया पर जो खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर है उंडेल दे। फिर वो खता की कुर्बानी के बछड़ा की सब चर्बी को उससे अलग करे, यानी जिस चर्बी से आंतड़ियां ढकी रहती हैं, और वो सब चर्बी जो आंतड़ियों पर लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों समेत, इन सबों को वो वैसे ही अलग करे जैसे सलामती के ज़बीहा के बछड़े से वो अलग किए जाते हैं। और काहिन उनको सौख्तनी कुर्बानी के मज़बा पर जलाए, और उस बछड़े की खाल और उसका सब गोश्त और सर और पाए और आंतड़ियां और गोबर, यानी पूरे बछड़े को लश्करगाह के बाहर किसी साफ जगह में जहां राख पड़ती है ले जाए, और सब कुछ लकड़ियों पर रखकर आग से जलाए। वो वहीं जलाया जाए जहां राख डाली जाती है। अगर बनी इसराइल की सारी जमात से अनजाने चूक हो जाए, और ये बात जमायत की आंखों से छुपी तो हो, तो भी वो उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे, मुजरिम हो गई हो, तो उस खता के जिसके वो कसूरवार हों मालूम हो जाने पर जमात एक बछड़ा
खता की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाने के लिए खैमाए इज्तिमा के सामने लाए, और जमायत के बुजुर्ग अपने अपने हाथ खुदावंद के आगे उस बछड़ा के सिर पर रखें, और बछड़ा खुदावंद के आगे ज़िबा किया जाए। और काहन ममसू उस बछड़े के खून में से कुछ खैमाए इज्तिमा में ले जाए, और काहन अपनी उंगली उस खून में डबो डबोकर उसे पर्दा के सामने 7 बार खुदावंद के आगे छिड़के, और उसी खून में से मज़बा के सींगों पर जो खुदावंद के आगे खैमाए इज्तिमा में है लगाए, और बाकी सारा खून सौख्तनी कुर्बानी के मज़बा के पाया पर जो खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर है उंडेल दे, और उसकी सब चर्बी उससे अलग करके उसे मज़बा पर जलाए। और बछड़े से यही करे, यानी जो कुछ खता की कुर्बानी के बछड़े से किया था वही इस बछड़े से करे। यूं काहन उनके लिए कफारा दे तो उन्हें मुआफी मिलेगी, और वो उस बछड़े को लश्करगाह के बाहर ले जाकर जलाए, जैसे पहले बछड़े को जलाया था। ये जमायत की खता की कुर्बानी है। और जब किसी सरदार से खता सरजद हो, और वो उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को नादानिस्ता कर बैठे और मुजरिम हो जाए, तो जब वो खता जो उससे सरजद हुई है उसे बता दी जाए, तो वो एक बेऐब बकरा अपनी कुर्बानी के वास्ते लाए, और अपना हाथ उस बकरे के सिर पर रखे, और उसे उस जगह ज़िबा करे जहां सौख्तनी कुर्बानी के जानवर खुदावंद के आगे ज़िबा करते हैं। ये खता की कुर्बानी है। और काहन खता की कुर्बानी का कुछ खून अपनी उंगली पर लेकर उसे सौख्तनी कुर्बानी के मज़बा के सींगों पर लगाए, और उसका बाकी सब खून सौख्तनी कुर्बानी के मज़बा के पाया पर उंडेल दे, और सलामती के ज़बीहा की चर्बी की तरह उसकी सब चर्बी मज़बा पर जलाए। यूं काहन उसकी खता का कफारा दे तो उसे मुआफी मिलेगी। और अगर कोई आम आदमियों से नादानिस्ता खता करे, और उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे मुजरिम हो जाए, तो जब वो खता जो उसने की उसे बता दी जाए, तो वो अपनी उस खता के वास्ते जो उससे सरजद हुई है एक बेऐब बकरी लाए, और वो अपना हाथ खता की कुर्बानी के जानवर के सिर पर रखे, और खता की कुर्बानी के उस जानवर को सौख्तनी कुर्बानी की जगह पर ज़िबा करे। और काहन उसका कुछ खून अपनी उंगली पर लेकर उसे सौख्तनी कुर्बानी के मज़बा के सींगों पर लगाए, और उसका बाकी सब खून मज़बा के पाया पर उंडेल दे, और वो उसकी सारी चर्बी को अलग करे, जैसे सलामती के ज़बीहा की चर्बी अलग की जाती है। और काहन उसे मज़बा पर राहत अंगेज खुशबू के तौर पर खुदावंद के लिए जलाए। यूं काहन उसके लिए कफारा दे तो उसे मुआफी मिलेगी। और अगर खता की कुर्बानी के लिए उसका चढ़ावा बर्रा हो, तो वो बेऐब मादा लाए, और अपना हाथ खता की कुर्बानी के जानवर के सिर पर रखे, और उसे खता की कुर्बानी के तौर पर उस जगह ज़िबा करे जहां सौख्तनी कुर्बानी ज़िबा करते हैं। और काहन खता की कुर्बानी का कुछ खून अपनी उंगली पर लेकर उसे सौख्तनी कुर्बानी के मज़बा के सींगों पर लगाए, और उसका बाकी सब खून मज़बा के पाया पर उंडेल दे, और उसकी सब चर्बी को अलग करे, जैसे सलामती के ज़बीहा के बर्रा की चर्बी अलग की जाती है। और काहन उसको मज़बा पर खुदावंद की आतशीन कुर्बानियों के ऊपर जलाए। यूं काहन उसके लिए उसकी खता का जो उससे हुई है कफारा दे तो उसे मुआफी मिलेगी। अहबार 5वां बाब।
और अगर कोई इस तरह की खता करे कि वो गवाह हो और उसे कसम दी जाए कि आया उसने कुछ देखा या उसे कुछ मालूम है और वो ना बताए, तो उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। या अगर कोई शख्स किसी नापाक चीज को छू ले, खा वो नापाक जानवर या नापाक चौपाए या नापाक रेंगने वाले जानदार की लाश हो, तो चाहे उसे मालूम भी ना हो कि वो नापाक हो गया है, तो भी वो मुजरिम ठहरेगा। या अगर वो इंसान की उन निजासतों में से जिनसे वो नजस हो जाता है, किसी निजासत को छू ले और उसे मालूम ना हो, तो वो उस वक्त मुजरिम ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। या अगर कोई बगैर सोचे अपनी जुबान से बुराई या भलाई करने की कसम खा ले, तो कसम खाकर वो आदमी चाहे कैसी ही बात बगैर सोचे कह दे, बशर्ते के उसे मालूम ना हो, तो ऐसी बात में मुजरिम उस वक्त ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। और जब वो इन बातों में से किसी में मुजरिम हो, तो जिस अमर में उससे खता हुई है, वो उसका इकरार करे और खुदावंद के हजूर अपने जुर्म की कुर्बानी लाए, यानी जो खता उससे हुई है उसके लिए रेवड़ में से एक मादा यानी एक भेड़ या बकरी खता की कुर्बानी के तौर पर गुजराने, और काहिन उसकी खता का कफारा दे। और अगर उसे भेड़ देने का मकदूर ना हो, तो वो अपनी खता के लिए जुर्म की कुर्बानी के तौर पर 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे खुदावंद के हजूर गुजराने, एक खता की कुर्बानी के लिए और दूसरा सौख्तनी कुर्बानी के लिए। वो उन्हें काहिन के पास ले आए, जो पहले से उसे जो खता की कुर्बानी के लिए गुजराने, और उसका सिर गर्दन के पास से मरोड़ डाले, पर उसे अलग न करे। और खता की कुर्बानी का कुछ खून मज़बा के पहलू पर छिड़के और बाकी खून को मज़बा के पाया पर गिर जाने दे। ये खता की कुर्बानी है। और दूसरे परिंदे को हुक्म के मुआफिक सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाए। यूं काहिन उसकी खता का जो उसने की है कफारा दे, तो उसे मुआफी मिलेगी। और अगर उसे 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे लाने का भी मकदूर ना हो, तो अपनी खता के वास्ते अपने चढ़ावे के तौर पर एफा के 10वें हिस्सा के बराबर मैदा खता की कुर्बानी के लिए लाए। उस पर ना तो वो तेल डाले ना लुबान रखे, क्योंकि ये खता की कुर्बानी है। वो उसे काहिन के पास लाए, और काहिन उसमें से अपनी मुट्ठी भरकर उसकी यादगारी का हिस्सा मज़बा पर खुदावंद की आतिशीन कुर्बानी के ऊपर जलाए। ये खता की कुर्बानी है। यूं काहिन उसके लिए इन बातों में से जिस किसी में उससे खता हुई है, उस खता का कफारा दे, तो उसे मुआफी मिलेगी। और जो कुछ बाकी रह जाएगा, वो नजर की कुर्बानी की तरह काहिन का होगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा, अगर खुदावंद की पाक चीजों में से किसी से तकसीर हो और वो नादानिस्ता खता करे, तो वो अपने जुर्म की कुर्बानी के तौर पर रेवड़ में से बेऐब मेंढा खुदावंद के हजूर चढ़ाए। जुर्म की कुर्बानी के लिए उसकी कीमत मकदस की मिस्काल के हिसाब से चांदी की उतनी ही मिस्कालें हों जितनी तू मुकर्रर कर दे। और जिस पाक चीज में उससे तकसीर हुई है, वो उसका मुआवजा दे, और उसमें 5वां हिस्सा और बढ़ाकर उसे काहिन के हवाला करे। यूं काहिन जुर्म की कुर्बानी का मेंढा चढ़ाकर उसका कफारा दे, तो उसे मुआफी मिलेगी। और अगर कोई खता करे और उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वो ये बात जानता भी ना हो, तो भी मुजरिम ठहरेगा और उसका गुनाह उसी के सर लगेगा।
पस वो रेवड़ में से एक बेऐब मेंढा उतने ही दाम का जो तू मुकर्रर कर दे, जुर्म की कुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लाए। यूं काहिन उसकी उस बात का जिसमें उससे नादानिस्ता चूक हो गई कफारा दे तो उसे मुआफी मिलेगी। ये जुर्म की कुर्बानी है, क्योंकि वो यकीनन खुदावन के आगे मुजरिम है। अहबार छठा बाब। फिर खुदावन ने मूसा से कहा, अगर किसी से ये खता हो कि वो खुदावन का कसूर करे और अमानत या लेन देन या लूट के मामला में अपने हमसाया को फरेब दे, या अपने हमसाया पर जुल्म करे, या किसी खोई हुई चीज को पाकर फरेब दे और झूठी कसम भी खा ले, पस इनमें से खा कोई बात हो जिसमें किसी शख्स से खता हो गई है, सो अगर उससे खता हुई है और वो मुजरिम ठहरा है, तो जो चीज उसने लूटी, या जो चीज उसने जुल्म करके छीनी, या जो चीज उसके पास अमानत थी, या जो खोई हुई चीज उसे मिली, या जिस चीज के बारे में उसने झूठी कसम खाई, उस चीज को वो जरूर पूरा पूरा वापस करे और असल के साथ 5वां हिस्सा भी बढ़ा कर दे। जिस दिन ये मालूम हो कि वो मुजरिम है, उसी दिन वो उसे उसके मालिक को वापस दे और अपने जुर्म की कुर्बानी खुदावंद के हजूर चढ़ाए, और जितना दाम तू मुकर्रर करे उतने दाम का एक बेऐब मेंढा रेवड़ में से जुर्म की कुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लाए। यूं काहिन उसके लिए खुदावंद के हजूर कफारा दे, तो जिस काम को करके वो मुजरिम ठहरा है उसकी उसे मुआफी मिलेगी। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों को यूं हुक्म दे कि सौख्तनी कुर्बानी के बारे में शरह ये है कि सौख्तनी कुर्बानी मज़बा के ऊपर आतिशदान पर तमाम रात सुबह तक रहे और मज़बा की आग उस पर जलती रहे, और काहिन अपना कितान का लिबास पहने और कितान के पाजामे को अपने तन पर डाले, और आग ने जो सौखनी कुर्बानी को मज़बा पर भस्म करके राख कर दिया है, उस राख को उठाकर उसे मज़बा की एक तरफ रखे। फिर वो अपने लिबास को उतार कर दूसरे कपड़े पहने और उस राख को उठाकर लश्करगाह के बाहर किसी साफ जगह में ले जाए, और मज़बा पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। और काहिन हर सुबह को उस पर लकड़ियां जलाकर सौख्तनी कुर्बानी को उसके ऊपर चुन दे, और सलामती के ज़बीहों की चर्बी को उसके ऊपर जलाया करे। मज़बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए, वो कभी बुझने ना पाए। और नजर की कुर्बानी के बारे में शरह ये है कि हारून के बेटे उसे मज़बा के आगे खुदावन के हजूर गुजराने, और वो नजर की कुर्बानी में से अपनी मुट्ठी भर इस तरह निकाले कि उसमें थोड़ा सा मैदा और कुछ तेल जो उसमें पड़ा होगा और नजर की कुर्बानी का सब लुबान आ जाए, और इस यादगारी के हिस्सा को मज़बा पर खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू के तौर पर जलाए। और जो बाकी बचे उसे हारून और उसके बेटे खाएं। वो बगैर खमीर के पाक जगह में खाया जाए, यानी वो खैमाए इज्तिमा के सहन में उसे खाएं, वो खमीर के साथ पकाया ना जाए। मैंने ये अपनी आतिशीन कुर्बानियों में से उनका हिस्सा दिया है, और ये खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी की तरह नहायत पाक है। हारून की औलाद के सब मर्द उसमें से खाएं। तमाम पुश्त दर पुश्त खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियों में से ये उनका हक होगा। जो कोई उन्हें छुए वो पाक ठहरेगा।
और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिस दिन हारून को मसा किया जाए, उस दिन वो और उसके बेटे खुदावंद के हजूर ये चढ़ावा चढ़ाएं कि एफा के 10वें हिस्सा के बराबर मैदा आधा सुबह को और आधा शाम को हमेशा नजर की कुर्बानी के लिए लाएं। वो तवे पर तेल में पकाया जाए। जब वो तर हो जाए तो तू उसे ले आना। इस नजर की कुर्बानी को पकवान के टुकड़ों की सूरत में गुजरानना, ताकि वो खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू भी हो। और जो उसके बेटों में से उसकी जगह काहिन ममसू हो, वो उसे गुजराने। ये दायमी कानून होगा कि वो खुदावंद के हजूर बिल्कुल जलाया जाए। काहिन की हर एक नजर की कुर्बानी बिल्कुल जलाई जाए, वो कभी खाई ना जाए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से कह कि खता की कुर्बानी के बारे में शरअ ये है कि जिस जगह सौखनी कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया जाए, वहीं खता की कुर्बानी का जानवर भी खुदावंद के आगे ज़िबा किया जाए। वो नहायत पाक है। जो काहिन उसे खता के लिए गुजराने, वो उसे खाए। वो जगह पाक में यानी खैमाए इज्तिमा के सहन में खाया जाए। जो कुछ उसके गोश्त से छू जाए, वो पाक ठहरेगा। और अगर किसी कपड़े पर उसके खून की छींट पड़ जाए, तो जिस कपड़े पर उसकी छींट पड़ी है, तू उसे किसी पाक जगह में धोना। और मिट्टी का वो बर्तन जिसमें वो पकाया जाए, तोड़ दिया जाए। पर अगर वो पीतल के बर्तन में पकाया जाए, तो उस बर्तन को मांजकर पानी से धो लिया जाए। और काहिनों में से हर मर्द उसे खाए, वो नहायत पाक है। पर जिस खता की कुर्बानी का कुछ खून खैमाए इज्तिमा के अंदर पाक मुकाम में कफारा के लिए पहुंचाया गया है, उसका गोश्त कभी न खाया जाए, बल्कि वो आग से जला दिया जाए। अहबार 7वां बाब। और जुर्म की कुर्बानी के बारे में शरअ ये है, वो नहायत मुकद्दस है। जिस जगह सौख्तनी कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करते हैं, वहीं वो जुर्म की कुर्बानी के जानवर को भी ज़िबा करें, और वो उसके खून को मज़बा के गिर्दागिर्द छिड़के, और वो उसकी सब चर्बी को चढ़ाए, यानी उसकी मोटी दुम को और उस चर्बी को जिससे अंतड़ियां ढकी रहती हैं, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और जिगर पर की जिल्ली गुर्दों समेत, इन सब को वो अलग करे। और काहिन इनको मज़बा पर खुदावंद के हजूर आतिशीन कुर्बानी के तौर पर जलाए। ये जुर्म की कुर्बानी है। और काहिनों में से हर मर्द उसे खाए, और किसी पाक जगह में उसे खाएं, वो नहायत पाक है। जुर्म की कुर्बानी वैसी ही है जैसी खता की कुर्बानी है, और उनके लिए एक ही शरअ है, और उन्हें वही काहिन ले जो उनसे कफारा देता है। और जो काहिन किसी शख्स की तरफ से सौख्तनी कुर्बानी गुजरानता है, वही काहिन उस सौख्तनी कुर्बानी की खाल को जो उसने गुजरानी अपने वास्ते ले ले। और हर एक नजर की कुर्बानी जो तनूर में पकाई जाए, और वो भी जो कढ़ाई में तैयार की जाए, और तवे की पकी हुई भी उसी काहिन की है जो उसे गुजराने। और हर एक नजर की कुर्बानी, खा उसमें तेल मिला हुआ हो या वो खुश्क हो, बराबर बराबर हारून के सब बेटों के लिए हो। और सलामती के ज़बीहा के बारे में जिसे कोई खुदावंद के हजूर चढ़ाए, शरअ ये है कि वो अगर शुक्राना के तौर पर उसे चढ़ाए, तो वो शुक्राना के ज़बीहा के साथ तेल मिले हुए बेखमीरी कुलचे और तेल चुपड़ी हुई बेखमीरी चपातियां और तेल मिले हुए मैदा के तर कुलचे भी गुजराने। और सलामती के ज़बीहा की कुर्बानी के साथ जो शुक्राना के लिए होगी,
وہ खमीरी रोटी के गिरदे अपने चढ़ावे पर गुजराने, और हर चढ़ावे में से वो एक को लेकर उसे खुदावंद के रूबरू हलाने की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाए, और ये उस काहिन का हो जो सलामती के ज़बीहा का खून छिड़कता है, और सलामती के ज़बीहों की उस कुर्बानी का गोश्त जो उस तरफ से शुक्राना के तौर पर होगी, कुर्बानी चढ़ाने के दिन ही खा लिया जाए। वो उसमें से कुछ सुबह तक बाकी ना छोड़े। पर अगर उसके चढ़ावे की कुर्बानी मन्नत का या रजा का हदिया हो, तो वो उस दिन खाई जाए जिस दिन वो अपनी कुर्बानी गुजराने, और जो कुछ उसमें से बच रहे वो दूसरे दिन खाया जाए। पर जो कुछ उस कुर्बानी के गोश्त में से तीसरे दिन तक रह जाए वो आग में जला दिया जाए। और उसके सलामती के ज़बीहों की कुर्बानी के गोश्त में से अगर कुछ तीसरे दिन खाया जाए तो वो मंजूर ना होगा, और ना उसका सवाब कुर्बानी देने वाले की तरफ मंसूब होगा, बल्कि ये मकरूह बात होगी, और जो उसमें से खाए उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। और जो गोश्त किसी नापाक चीज से छू जाए खाया ना जाए, वो आग में जलाया जाए, और ज़बीहा के गोश्त को जो पाक है वो तू खाए। लेकिन जो शख्स निजासत की हालत में खुदावंद की सलामती के ज़बीहा का गोश्त खाए, वो अपने लोगों में से काट डाला जाए। और जो कोई किसी नापाक चीज को छुए, खा वो इंसान की निजासत हो या नापाक जानवर हो या कोई नजस मकरूह शय हो, और फिर खुदावंद की सलामती के ज़बीहा के गोश्त में से खाए, वो भी अपने लोगों में से काट डाला जाए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि तुम लोग ना तो बैल की, ना भेड़ की, और ना बकरी की कुछ चर्बी खाना। जो जानवर खुद बखुद मर गया हो और जिसको दरिंदों ने फाड़ा हो, उनकी चर्बी और कामों में तो लाओ, पर उसे तुम किसी हाल में ना खाना। क्योंकि जो कोई ऐसे चौपाए की चर्बी खाए जिसे लोग आतशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर चढ़ाते हैं, वो खाने वाला आदमी अपने लोगों में से काट डाला जाए। और तुम अपनी सुकूनत गाहों में कहीं भी किसी तरह का खून, खा परिंदे का हो या चौपाए का, हरगिज ना खाना। जो कोई किसी तरह का खून खाए, वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि जो कोई अपना सलामती का ज़बीहा खुदावंद के हजूर गुजराने, वो खुद ही अपने सलामती के ज़बीहा की कुर्बानी में से अपना चढ़ावा खुदावंद के हजूर लाए। वो अपने ही हाथों में खुदावंद की आतशीन कुर्बानी को लाए, यानी चर्बी को सीना समेत लाए, कि सीना हिलाने की कुर्बानी के तौर पर हिलाया जाए। और काहिन चर्बी को मज़बा पर जलाए, पर सीना हारून और उसके बेटों का हो। और तुम सलामती के ज़बीहों की दाहिनी रान उठाने की कुर्बानी के तौर पर काहिन को देना। हारून के बेटों में से जो सलामती के ज़बीहों का खून और चर्बी गुजराने, वही वो दाहिनी रान अपना हिस्सा ले। क्योंकि बनी इस्राएल की सलामती के ज़बीहों में से हलाने की कुर्बानी का सीना और उठाने की कुर्बानी की रान को लेकर मैंने हारून, काहिन और उसके बेटों को दिया है, कि ये हमेशा बनी इस्राएल की तरफ से उनका हक हो। ये खुदावंद की आतशीन कुर्बानियों में से हारून के ममसूह होने का और उसके बेटों के ममसूह होने का हिस्सा है, जो उस दिन मुकर्रर हुआ जब वो खुदावंद के हजूर काहिन की खिदमत को अंजाम देने के लिए हाजिर किए गए, यानी जिस दिन खुदावंद ने उन्हें मसा किया। उस दिन उसने ये हुक्म दिया कि बनी इस्राएल की तरफ से उन्हें ये मिला करे, सो उनकी नस्ल दर नस्ल ये उनका हक रहेगा। सौख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी और खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी और तखसीस
اور سلامتی کے ذبیحہ کے بارے میں شرح یہ ہے، جس کا حکم خداوند نے موسیٰ کو اس دن کوہ سینا پر دیا، جس دن اس نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ سینا کے بیابان میں خداوند کے حضور اپنی قربانی گزرانے۔ احبار 8واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اور لباس کو اور مسح کرنے کے تیل کو اور خطا کی قربانی کے بچھڑے اور دونوں مینڈھوں اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری کو لے اور ساری جماعت کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع کر۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا اور ساری جماعت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع ہوئی۔ تب موسیٰ نے جماعت سے کہا، یہ وہ کام ہے جس کے کرنے کا حکم خداوند نے دیا ہے۔ پھر موسیٰ ہارون اور اس کے بیٹوں کو آگے لایا اور ان کو پانی سے غسل دلایا، اور اس کو کرتا پہنا کر اس پر کمر بند لپیٹا اور اس کو جبہ پہنا کر اس پر آفود لگایا، اور آفود کی کاریگری سے بنے ہوئے کمر بند کو اس پر لپیٹا اور اسی سے اس کو اس کے اوپر کس دیا، اور سینہ بند کو اس کے اوپر لگا کر سینہ بند میں اوریم اور توئیم لگا دیے، اور اس کے سر پر امامہ رکھا، اور امامہ پر سامنے سونے کے پتر یعنی مقدس تاج کو لگایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور موسیٰ نے مسح کرنے کا تیل لیا اور مسکن کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو مسح کر کے مقدس کیا، اور اس میں سے تھوڑا سا لے کر مذبح پر 7 بار چھڑکا، اور مذبح اور اس کے سب ظروف کو اور حوض اور اس کی کرسی کو مسح کیا تاکہ انہیں مقدس کرے، اور مسح کرنے کے تیل میں سے تھوڑا سا ہارون کے سر پر ڈالا اور اسے مسح کیا تاکہ وہ مقدس ہو۔ پھر موسیٰ ہارون کے بیٹوں کو آگے لایا اور ان کو کرتے پہنائے اور ان پر کمر بند لپیٹے اور ان کو پگڑیاں پہنائیں، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور وہ خطا کی قربانی کے بچھڑے کو آگے لایا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ خطا کی قربانی کے بچھڑے کے سر پر رکھے۔ پھر اس نے اس کو ذبح کیا، اور موسیٰ نے خون کو لے کر مذبح کے گردا گرد اس کے سینگوں پر اپنی انگلی سے لگایا اور مذبح کو پاک کیا، اور باقی خون مذبح کے پایا پر انڈھیل کر اس کا کفارہ دیا تاکہ وہ مقدس ہو۔ اور موسیٰ نے آنتڑیوں کے اوپر کی ساری چربی اور جگر پر کی جلی اور دونوں گردوں اور ان کی چربی کو لیا اور انہیں مذبح پر جلایا، لیکن بچھڑے کو اس کی کھال اور گوشت اور گوبر سمیت لشکرگاہ کے باہر آگ میں جلایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ پھر اس نے سوختنی قربانی کے مینڈے کو حاضر کیا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھے، اور اس نے اس کو ذبح کیا، اور موسیٰ نے خون کو مذبح کے اوپر گردا گرد چھڑکا۔ پھر اس نے مینڈے کے عضو کو کاٹ کر الگ کیا، اور موسیٰ نے سر اور اعضا اور چربی کو جلایا، اور اس نے انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھویا، اور موسیٰ نے پورے مینڈے کو مذبح پر جلایا۔ یہ سوختنی قربانی راحت انگیز خوشبو کے لیے تھی۔ یہ خداوند کی آتشین قربانی تھی، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور اس نے دوسرے مینڈے کو جو تخصیصی مینڈا تھا حاضر کیا،
اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھے، اور اس نے اس کو ذبح کیا، اور موسیٰ نے اس کا کچھ خون لے کر اسے ہارون کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا۔ پھر وہ ہارون کے بیٹوں کو آگے لایا، اور اسی خون میں سے کچھ ان کے داہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا، اور باقی خون کو اس نے مذبح کے اوپر گردا گرد چھڑکا، اور اس نے چربی اور موٹی دم اور انتڑیوں کے اوپر کی چربی اور جگر پر کی جلی اور دونوں گردے اور ان کی چربی اور داہنی ران ان سبوں کو لیا، اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری میں سے جو خداوند کے حضور رہتی تھی، بے خمیری روٹی کا ایک گردا اور تیل چپڑی ہوئی روٹی کا ایک گردا اور ایک چپاتی نکال کر انہیں چربی اور داہنی ران پر رکھا، اور ان سبوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں پر رکھ کر ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا۔ پھر موسیٰ نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے لیا اور ان کو مذبح پر سوختنی قربانی کے اوپر جلایا۔ یہ راحت انگیز خوشبو کے لیے تخصیصی قربانی تھی، یہ خداوند کی آتشین قربانی تھی۔ پھر موسیٰ نے سینا کو لیا اور اس کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا۔ اس تخصیصی مینڈے میں سے یہی موسیٰ کا حصہ تھا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور موسیٰ نے مسح کرنے کے تیل اور مذبح کے اوپر کے خون میں سے کچھ لے کر اسے ہارون اور اس کے لباس پر اور ساتھ ہی اس کے بیٹوں پر اور ان کے لباس پر چھڑکا، اور ہارون اور اس کے لباس کو اور اس کے بیٹوں کو اور ان کے لباس کو مقدس کیا۔ اور موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہا کہ یہ گوشت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر پکاؤ، اور اس کو وہیں اس روٹی کے ساتھ جو تخصیصی ٹوکری میں ہے کھاؤ، جیسا میں نے حکم کیا ہے کہ ہارون اور اس کے بیٹے اسے کھائیں۔ اور اس گوشت اور روٹی میں سے جو کچھ بچ رہے اسے آگ میں جلا دینا، اور جب تک تمہاری تخصیص کے ایام پورے نہ ہوں تب تک، یعنی 7 دن تک تم خیمہ اجتماع کے دروازہ سے باہر نہ جانا، کیونکہ 7 دن تک وہ تمہاری تخصیص کرتا رہے گا۔ جیسا آج کیا گیا ہے ویسا ہی کرنے کا حکم خداوند نے دیا ہے، تاکہ تمہارے لیے کفارہ ہو۔ سو تم خیمہ اجتماع کے دروازہ پر 7 روز تک دن رات ٹھہرے رہنا، اور خداوند کے حکم کو ماننا، تاکہ تم مر نہ جاؤ، کیونکہ ایسا ہی حکم مجھ کو ملا ہے۔ پس ہارون اور اس کے بیٹوں نے سب کام خداوند کے حکم کے مطابق کیا جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا۔ اخبار 9واں باب۔ 8ویں دن موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں کو اور بنی اسرائیل کے بزرگوں کو بلایا، اور ہارون سے کہا کہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بے عیب بچڑا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک بے عیب مینڈا تو اپنے واسطے لے، اور ان کو خداوند کے حضور گزران، اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ تم خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا اور ایک برا جو یک سالہ اور بے عیب ہوں لو، اور سلامتی کے ذبیحہ کے لیے خداوند کے حضور چڑھانے کے واسطے ایک بیل اور ایک مینڈا اور تیل ملی ہوئی نذر کی قربانی بھی لو، کیونکہ آج خداوند تم پر ظاہر ہوگا۔ اور وہ جو کچھ موسیٰ نے حکم کیا تھا سب خیمہ اجتماع کے سامنے لے آئے، اور ساری جماعت نزدیک آ کر
खुदावंद के हजूर खड़ी हुई। मूसा ने कहा, ये वो काम है जिसकी बाबत खुदावंद ने हुक्म दिया है कि तुम उसे करो, और खुदावंद का जलाल तुम पर जाहिर होगा। और मूसा ने हारून से कहा कि मज़बा के नजदीक जा और अपनी खता की कुर्बानी और अपनी सौख्तनी कुर्बानी गुजरान, और अपने लिए और कौम के लिए कफारा दे, और जमायत के चढ़ावे को गुजरान और उनके लिए कफारा दे, जैसा खुदावंद ने हुक्म किया है। सो हारून ने मज़बा के पास जाकर उस बछड़े को, जो उसकी खता की कुर्बानी के लिए था, ज़िबा किया। और हारून के बेटे खून को उसके पास ले गए, और उसने अपनी उंगली उसमें डबो डबो कर उसे मज़बा के सींगों पर लगाया, और बाकी खून मज़बा के पाया पर उंडेल दिया। लेकिन खता की कुर्बानी की चर्बी और गुर्दों और जिगर पर की जिल्ली को उसने मज़बा पर जलाया, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और गोश्त और खाल को लश्करगाह के बाहर आग में जलाया। फिर उसने सौखनी कुर्बानी के जानवर को ज़िबा किया, और हारून के बेटों ने खून उसे दिया, और उसने उसको मज़बा के गिर्दागिर्द छिड़का, और सौख्तनी कुर्बानी को एक एक टुकड़ा करके सर समेत उसको दिया, और उसने उन्हें मज़बा पर जलाया। और उसने आंतड़ियों और पायों को धोया, और उनको मज़बा पर सौख्तनी कुर्बानी के ऊपर जलाया। फिर जमायत के चढ़ावे को आगे लाकर, और उस बकरे को, जो जमायत की खता की कुर्बानी के लिए था, लेकर उसको ज़िबा किया, और पहले की तरह उसे भी खता के लिए गुजराना। और सौख्तनी कुर्बानी के जानवर को आगे लाकर उसने उसे हुक्म के मुताबिक गुजराना। फिर नजर की कुर्बानी को आगे लाया, और उसमें से एक मुट्ठी लेकर सुबह की सौख्तनी कुर्बानी के अलावा उसे जलाया। और उसने बैल और मेंढे को, जो लोगों की तरफ से सलामती के ज़बीहा के तौर पर था, और हारून के बेटों ने खून उसे दिया, और उसने उसको मज़बा पर गिर्दागिर्द छिड़का। और उन्होंने बैल की चर्बी को और मेंढे की मोटी दुम को, और उस चर्बी को जिससे आंतड़ियां ढकी रहती हैं, और दोनों गुर्दों और जिगर पर की जिल्ली को भी उसे दिया, और चर्बी सीनों पर धर दी। सो उसने वो चर्बी मज़बा पर जलाई। और सीना और दाहिनी रान को हारून ने मूसा के हुक्म के मुताबिक हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाया। और हारून ने जमायत की तरफ अपने हाथ बढ़ाकर उनको बरकत दी, और खता की कुर्बानी और सौख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानी गुजरान कर नीचे उतर आया। और मूसा और हारून खैमाए इज्तिमा में दाखिल हुए, और बाहर निकलकर लोगों को बरकत दी। तब सब लोगों पर खुदावंद का जलाल नमूदार हुआ, और खुदावंद के हजूर से आग निकली, और सौख्तनी कुर्बानी और चर्बी को मज़बा के ऊपर भस्म कर दिया। लोगों ने ये देखकर नारे मारे और सरनगू हो गए। अहबार 10वां बाब। और नदब और एबहू ने, जो हारून के बेटे थे, अपने अपने बखूर दान को लेकर उनमें आग भरी, और उस पर और ऊपरी आग, जिसका हुक्म खुदावंद ने उनको नहीं दिया था, खुदावंद के हजूर गुजरानी। और खुदावंद के हजूर से आग निकली और उन दोनों को खा गई, और वो खुदावंद के हजूर मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जो खुदावंद ने कही थी कि जो मेरे नजदीक आए, जरूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने और सब लोगों के आगे मेरी तमजीद करें। और हारून चुप रहा। फिर मूसा ने मिसियाल और अलसफन को, जो हारून के चचा
उजियल के बेटे थे, बुलाकर उनसे कहा, नजदीक आओ और अपने भाइयों को मकदस के सामने से उठाकर लश्करगाह के बाहर ले जाओ। पस वो नजदीक गए और उन्हें उनके कुर्तों समेत उठाकर मूसा के हुक्म के मुताबिक लश्करगाह के बाहर ले गए। और मूसा ने हारून और उसके बेटों एलअज़ेज और इतमर से कहा कि ना तुम्हारे सिर के बाल बिखरने पाएं और ना तुम अपने कपड़े फाड़ना, ताकि ना तुम ही मरो और ना सारी जमायत पर उसका गजब नाज़िल हो। पर इस्राएल के सब घराने के लोग जो तुम्हारे भाई हैं, उस आग पर जो खुदावंद ने लगाई है नोहा करें, और तुम खैमाए इज्तिमा के दरवाजा से बाहर ना जाना, ता ऐसा न हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि खुदावंद का मसा करने का तेल तुम पर लगा हुआ है। सो उन्होंने मूसा के कहने के मुताबिक अमल किया। और खुदावंद ने हारून से कहा कि तू या तेरे बेटे मैं या शराब पीकर कभी खैमाए इज्तिमा के अंदर दाखिल ना होना, ताकि तुम मर न जाओ। ये तुम्हारे लिए नस्ल दर नस्ल हमेशा तक एक कानून रहेगा, ताकि तुम मुकद्दस और आम अशिया में और पाक और नापाक में तमीज कर सको, और बनी इस्राएल को वो सब आइन सिखा सको जो खुदावंद ने मूसा की मार्फत उनको फरमाए हैं। फिर मूसा ने हारून और उसके बेटों अलअज़र और इतमर से जो बाकी रह गए थे कहा कि खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियों में से जो नजर की कुर्बानी बच रही है उसे ले लो और बगैर खमीर के उसको मज़बा के पास खाओ, क्योंकि ये नहायत मुकद्दस है, और तुम उसे किसी पाक जगह में खाना, इसलिए कि खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियों में से तेरा और तेरे बेटों का ये हक है, क्योंकि मुझे ऐसा ही हुक्म मिला है। और हिलाने की कुर्बानी के सीना को और उठाने की कुर्बानी की रान को तुम लोग यानी तेरे साथ तेरे बेटे और बेटियां भी किसी साफ जगह में खाना, क्योंकि बनी इस्राएल की सलामती के ज़बीहों में से ये तेरा और तेरे बेटों का हक है जो दिया गया है। और उठाने की कुर्बानी की रान और हिलाने की कुर्बानी का सीना, जिसे वो चर्बी की आतिशीन कुर्बानियों के साथ लाएंगे, ताकि वो खुदावंद के हजूर हिलाने की कुर्बानी के तौर पर हिलाए जाएं। ये दोनों हमेशा के लिए खुदावंद के हुक्म के मुताबिक तेरा और तेरे बेटों का हक होगा। फिर मूसा ने खता की कुर्बानी के बकरे को जो बहुत तलाश किया, तो क्या देखता है कि वो जल चुका है। तब वो हारून के बेटों अलअज़र और इतमर पर जो बच रहे थे नाराज हुआ और कहने लगा कि खता की कुर्बानी जो नहायत मुकद्दस है, वो जिसे खुदावंद ने तुमको इसलिए दिया है कि तुम जमायत के गुनाह को अपने ऊपर उठाकर खुदावंद के हजूर उनके लिए कफारा दो, तुमने उसका गोश्त मकदस में क्यों न खाया? देखो, उसका खून मकदस में तो लाया ही नहीं गया था। पस तुमको लाजिम था कि मेरे हुक्म के मुताबिक तुम उसे मकदस में खा लेते। तब हारून ने मूसा से कहा, देख, आज ही उन्होंने अपनी खता की कुर्बानी और अपनी सौख्तनी कुर्बानी खुदावंद के हजूर गुजरानी, और मुझ पर ऐसे ऐसे हादसे गुजर गए। पस अगर मैं आज खता की कुर्बानी का गोश्त खाता, तो क्या ये बात खुदावंद की नजर में भली होती? जब मूसा ने ये सुना तो उसे पसंद आया। अहबार 11वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, तुम बनी इस्राएल से कहो कि जमीन के सब हैवानात में से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो ये हैं, जानवरों में जिनके पांव अलग और चिरे हुए हैं
और वो चुगाली करते हैं, तुम उनको खाओ। मगर जो चुगाली करते हैं या जिनके पांव अलग हैं, उनमें से तुम इन जानवरों को ना खाना, यानी ऊंट को, क्योंकि वो चुगाली करता है, पर उसके पांव अलग नहीं, सो वो तुम्हारे लिए नापाक है। और साफान को, क्योंकि वो चुगाली करता है, पर उसके पांव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और खरगोश को, क्योंकि वो भी चुगाली तो करता है, पर उसके पांव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और सुआर को, क्योंकि उसके पांव अलग और चिरे हुए हैं, पर वो चुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम उनका गोश्त न खाना और उनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो जानवर पानी में रहते हैं, उनमें से तुम उनको खाना, यानी समुद्रों और दरियाओं वगैरह के जानवरों में जिनके पर और छिलके हों, तुम उन्हें खाओ। लेकिन वो सब जानदार जो पानी में, यानी समुद्रों और दरियाओं वगैरह में चलते फिरते और रहते हैं, लेकिन उनके पर और छिलके नहीं होते, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं, और वो तुम्हारे लिए मकरूह ही रहें। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों से कराहियत करना। पानी के जिस किसी जानदार के ना पर हों और ना छिलके, वो तुम्हारे लिए मकरूह है। और परिंदों में जो मकरूह होने के सबब से कभी खाए ना जाएं और जिनसे तुम्हें कराहियत करना है, सो ये हैं उकाब और उस्तख्वान, ख्वार और लगड़ और चील और हर किस्म का बाज और हर किस्म के कौवे और शुतुरमुर्ग और चुगद और कोकल और हर किस्म के शाहीन और बूम और हड़गेला और उल्लू और काज और हवासिल और गिद्ध और लकलक और सब किस्म के बगले और हुदहुद और चमगादड़ और सब परदार रेंगने वाले जानदार, जितने चार पांव के बल चलते हैं, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं। मगर परदार रेंगने वाले जानदारों में से जो चार पांव के बल चलते हैं, तुम उन जानदारों को खा सकते हो जिनके जमीन के ऊपर कूदने फांदने को पांव के ऊपर टांगे होती हैं। वो जिन्हें तुम खा सकते हो ये हैं हर किस्म की टिड्डी और हर किस्म का सोलयाम और हर किस्म का झींगर और हर किस्म का टिड्डा। पर सब परदार रेंगने वाले जानदार जिनके चार पांव हैं, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं, और इनसे तुम नापाक ठहरोगे। जो कोई इनमें से किसी की लाश को छुए, वो शाम तक नापाक रहेगा, और जो कोई इनकी लाश में से कुछ भी उठाए, वो अपने कपड़े धो डाले, और वो शाम तक नापाक रहेगा। और सब चार पाए जिनके पांव अलग हैं, पर वो चिरे हुए नहीं और ना वो चुगाली करते हैं, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनको छुए, वो नापाक ठहरेगा। और चार पांव पर चलने वाले जानवरों में से जितने अपने पंजों के बल चलते हैं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनकी लाश को छुए, वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश को उठाए, वो अपने कपड़े धो डाले, और वो शाम तक नापाक रहेगा। ये सब तुम्हारे लिए नापाक हैं। और जमीन पर के रेंगने वाले जानवरों में से जो तुम्हारे लिए नापाक हैं, वो ये हैं, यानी न्याउला और चूहा और हर किस्म की बड़ी छिपकली और हिरजून और गो और छिपकली और सांड और गिरगट। सब रेंगने वाले जानदारों में से ये तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनके मरे पीछे उनको छुए, वो शाम तक नापाक रहेगा। और जिस चीज पर वो मरे पीछे गिरे,
वो चीज नापाक होगी, खा वो लकड़ी का बर्तन हो या कपड़ा या चमड़ा या बोरा हो, खा किसी का कैसा ही बर्तन हो, जरूर है कि वो पानी में डाला जाए और वो शाम तक नापाक रहेगा। इसके बाद वो पाक ठहरेगा। और अगर इनमें से कोई किसी मिट्टी के बर्तन में गिर जाए, तो जो कुछ उसमें है वो नापाक होगा, और बर्तन को तुम तोड़ डालना। उसके अंदर अगर खाने की कोई चीज हो जिसमें पानी पड़ा हुआ हो, तो वो भी नापाक ठहरेगी। और अगर ऐसे बर्तन में पीने के लिए कुछ हो, तो वो नापाक होगा। और जिस चीज पर उनकी लाश का कोई हिस्सा गिरे, खा वो तनूर हो या चूल्हा, वो नापाक होगी और वो तोड़ डाली जाए। ऐसी चीजें नापाक होती हैं और वो तुम्हारे लिए भी नापाक हों। मगर चश्मा या तालाब जिसमें बहुत पानी हो, वो पाक रहेगा, पर जो कुछ उनकी लाश से छू जाए वो नापाक होगा। और अगर उनकी लाश का कुछ हिस्सा किसी बोने के बीज पर गिरे, तो वो बीज पाक रहेगा। पर अगर बीज पर पानी डाला गया हो और उसके बाद उनकी लाश में से कुछ हिस्सा उस पर गिरा हो, तो वो तुम्हारे लिए नापाक होगा। और जिन जानवरों को तुम खा सकते हो, अगर उनमें से कोई मर जाए, तो जो कोई उसकी लाश को छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश में से कुछ खाए, वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश को उठाए, वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। और सब रेंगने वाले जानदार जो जमीन पर रेंगते हैं मकरूह हैं और कभी खाए ना जाएं। और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानदारों में से जितने पेट या चार पांव के बल चलते हैं, या जिनके बहुत से पांव होते हैं, उनको तुम ना खाना, क्योंकि वो मकरूह हैं। और तुम किसी रेंगने वाले जानदार के सबब से जो जमीन पर रेंगता है, अपने आप को मकरूह ना बना लेना, और ना उनसे अपने आप को नापाक करना कि नजस हो जाओ, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना और पाक होना, क्योंकि मैं कुद्दूस हूं। सो तुम किसी तरह के रेंगने वाले जानदार से जो जमीन पर चलता है, अपने आप को नापाक ना करना, क्योंकि मैं खुदावंद हूं। और तुमको मुल्क मिस्र से इसलिए निकाल कर लाया हूं कि मैं तुम्हारा खुदा ठहरूं। इसलिए तुम मुकद्दस होना, क्योंकि मैं कुद्दूस हूं। हैवानात और परिंदों और आबी जानवरों और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानदारों के बारे में शरअ यही है, ताकि पाक और नापाक में, और जो जानवर खाए जा सकते हैं और जो नहीं खाए जा सकते, उनके दरमियान इम्तियाज किया जाए। अहबार 12वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि अगर कोई औरत हामला हो और उसके लड़का हो, तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगी, जैसे हैज के अय्याम में रहती है। और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। इसके बाद 33 दिन तक वो तहारत के खून में रहे, और जब तक उसकी तहारत के अय्याम पूरे न हो, तब तक ना तो किसी मुकद्दस चीज को छुए और ना मकदस में दाखिल हो। और अगर उसके लड़की हो, तो वो 2 हफ्ते नापाक रहेगी, जैसे हैज के अय्याम में रहती है। इसके बाद वो 66 दिन तक तहारत के खून में रहे। और जब उसकी तहारत के अय्याम पूरे हो जाएं, तो खा उसके बेटा हो या बेटी, वो सौख्तनी कुर्बानी के लिए एक यकसाला बर्रा और खता की कुर्बानी के लिए कबूतर का एक बच्चा या एक कुमरी
खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर काहिन के पास लाए, और काहिन उसे खुदावंद के हजूर गुजराने और उसके लिए कफारा दे। तब वो अपने जरियाने खून से पाक ठहरेगी। जिस औरत का लड़का या लड़की हो, उसके बारे में शरा ये है, और अगर उसको बर्रा लाने का मकदूर ना हो, तो वो 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे या एक सौख्तनी कुर्बानी के लिए और दूसरा खता की कुर्बानी के लिए लाए। यूं काहिन उसके लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगी। अहबार 13वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, अगर किसी के जिस्म की जिल्द में वर्म या पिपड़ी या सफेद चमकता हुआ दाग हो, और उसके जिस्म की जिल्द में कोढ़ सी बला हो, तो उसे हारून काहिन के पास या उसके बेटों में से जो काहिन हैं किसी के पास ले जाएं, और काहिन उसके जिस्म की जिल्द की बला को देखे। अगर उसकी बला की जगह के बाल सफेद हो गए हों और वो बला देखने में खाल से गहरी हो, तो वो कोढ़ का मर्ज है, और काहिन उस शख्स को देखकर उसे नापाक करार दे। और अगर उसके जिस्म की जिल्द का चमकता हुआ दाग सफेद तो हो, पर खाल से गहरा ना दिखाई दे, और ना उसके ऊपर के बाल सफेद हो गए हों, तो काहिन उस शख्स को 7 दिन तक बंद रखे, और 7वें दिन काहिन उसे मुलाहिजा करे, और अगर वो बला उसे वहीं की वहीं दिखाई दे और जिल्द पर फैल न गई हो, तो काहिन उसे 7 दिन और बंद रखे, और 7वें दिन काहिन उसे फिर मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि उसकी बला की चमक कम है और वो जिल्द के ऊपर फैली भी नहीं है, तो काहिन उसे पाक करार दे, क्योंकि वो पिपड़ी है। सो वो अपने कपड़े धो डाले और साफ हो जाए। लेकिन अगर काहिन के उस मुलाहिजा के बाद जिसमें वो साफ करार दिया गया था, वो पिपड़ी उसकी जिल्द पर बहुत फैल जाए, तो वो शख्स काहिन को फिर दिखाया जाए, और काहिन उसे मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो पिपड़ी जिल्द पर फैल गई है, तो वो उसे नापाक करार दे, क्योंकि वो कोढ़ है। अगर किसी शख्स को कोढ़ का मर्ज हो, तो उसे काहिन के पास ले जाएं, और काहिन उसे मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि जिल्द पर सफेद वर्म है और उसने बालों को सफेद कर दिया है, और उस वर्म की जगह का गोश्त जीता और कच्चा है, तो ये उसके जिस्म की जिल्द में पुराना कोढ़ है। सो काहिन उसे नापाक करार दे, पर उसे बंद न करे, क्योंकि वो नापाक है। और अगर कोढ़ जिल्द में चारों तरफ फूट आए, और जहां तक काहिन को दिखाई देता है यही मालूम हो कि उसकी जिल्द सिर से पांव तक कोढ़ से ढक गई है, तो काहिन गौर से देखे, और अगर उस शख्स का सारा जिस्म कोढ़ से ढका हुआ हो, और अगर उस शख्स का सारा जिस्म कोढ़ से ढका हुआ निकले, तो काहिन उस मरीज को पाक करार दे, क्योंकि वो सब सफेद हो गया है और वो पाक है। पर जिस दिन जीता और कच्चा गोश्त उस पर दिखाई दे, वो नापाक होगा, और काहिन उस कच्चे गोश्त को देखकर उस शख्स को नापाक करार दे। कच्चा गोश्त नापाक होता है, वो कोढ़ है। और अगर वो कच्चा गोश्त फिर कर सफेद हो जाए, तो वो काहिन के पास जाए, और काहिन उसे मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि मर्ज की जगह सब सफेद हो गई है, तो काहिन मरीज को पाक करार दे, वो पाक है। और अगर किसी के जिस्म की जिल्द पर
फोड़ा होकर अच्छा हो जाए और फोड़े की जगह सफेद वरम या सुर्खी माइल चमकता हुआ सफेद दाग हो, तो वो काहिन को दिखाया जाए और काहिन उसे मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो खाल से गहरा नजर आता है और उस पर के बाल भी सफेद हो गए हैं, तो काहिन उस शख्स को नापाक करार दे, क्योंकि वो कोढ़ है जो फोड़े में से फूट कर निकला है। पर अगर काहिन देखे कि उस पर सफेद बाल नहीं और वो खाल से गहरा भी नहीं है और उसकी चमक कम है, तो काहिन उसे 7 दिन तक बंद रखे। और अगर वो जिल्द पर चारों तरफ फैल जाए, तो काहिन उसे नापाक करार दे, क्योंकि वो कोढ़ की बला है। पर अगर वो चमकता हुआ दाग अपनी जगह पर वहीं का वहीं रहे और फैल ना जाए, तो वो फोड़े का दाग है। पस काहिन उस शख्स को पाक करार दे। या अगर जिस्म की खाल कहीं से जल जाए और उस जली हुई जगह का जीता गोश्त एक सुर्खी माइल चमकता हुआ सफेद दाग या बिल्कुल ही सफेद दाग बन जाए, तो काहिन उसे मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि उस चमकते हुए दाग के बाल सफेद हो गए हैं और वो खाल से गहरा दिखाई देता है, तो वो कोढ़ है जो उस जल जाने से पैदा हुआ है, और काहिन उस शख्स को नापाक करार दे, क्योंकि उसे कोढ़ की बीमारी है। लेकिन अगर काहिन देखे कि उस चमकते हुए दाग पर सफेद बाल नहीं और ना वो खाल से गहरा है, बल्कि उसकी चमक भी कम है, तो वो उसे 7 दिन तक बंद रखे, और 7वें दिन काहिन उसे देखे। अगर वो जिल्द पर बहुत फैल गया हो, तो काहिन उस शख्स को नापाक करार दे, क्योंकि उसे कोढ़ की बीमारी है। और अगर वो चमकता हुआ दाग अपनी जगह पर वहीं का वहीं रहे और जिल्द पर फैला हुआ ना हो, बल्कि उसकी चमक भी कम हो, तो वो फक्त जल जाने के बायस फूला हुआ है, और काहिन उस शख्स को पाक करार दे, क्योंकि वो दाग जल जाने के सबब से है। अगर किसी मर्द या औरत के सिर या ठोड़ी में दाग हो, तो काहिन उस दाग को मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो खाल से गहरा मालूम होता है और उस पर जर्द जर्द बारीक रोंगटे हैं, तो काहिन उस शख्स को नापाक करार दे, क्योंकि वो साफा है जो सिर या ठोड़ी का कोढ़ है। और अगर काहिन देखे कि वो साफा की बला खाल से गहरी नहीं मालूम होती और उस पर स्याह बाल नहीं है, तो काहिन उस शख्स को जिसे साफा का मर्ज है 7 दिन तक बंद रखे, और 7वें दिन काहिन उस बला का मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि साफा फैला नहीं और उस पर कोई जर्द बाल भी नहीं और साफा खाल से गहरा नहीं मालूम होता, तो उस शख्स के बाल मूंढे जाएं, लेकिन जहां साफा हो वो जगह ना मूंढी जाए, और काहिन उस शख्स को जिसे साफा का मर्ज है 7 दिन और बंद रखे। फिर 7वें रोज काहिन साफा का मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि साफा जिल्द में फैला नहीं और ना वो खाल से गहरा दिखाई देता है, तो काहिन उस शख्स को पाक करार दे, और वो अपने कपड़े धोए और साफ हो जाए। पर अगर उसकी सफाई के बाद साफा उसकी जिल्द पर बहुत फैल जाए, तो काहिन उसे देखे, और अगर साफा उसकी जिल्द पर फैला हुआ नजर आए, तो काहिन जर्द बाल को ना ढूंढे, क्योंकि वो शख्स नापाक है। पर अगर उसका साफा अपनी जगह पर वहीं का वहीं दिखाई दे और उस पर स्याह बाल निकले हुए हों, तो साफा अच्छा हो गया, वो शख्स पाक है, और काहिन उसे पाक करार दे।
और अगर किसी मर्द या औरत के जिस्म की जिल्द में चमकते हुए दाग या सफेद चमकते हुए दाग हों, तो काहिन देखे, और अगर उनके जिस्म की जिल्द के दाग स्याही माइल सफेद रंग के हों, तो वो छिप है जो जिल्द में फूट निकली है, वो शख्स पाक है। और जिस शख्स के सिर के बाल गिर गए हों, वो गंजा तो है मगर पाक है। और जिस शख्स के सिर के बाल पेशानी की तरफ से गिर गए हों, वो चंदला तो है मगर पाक है। लेकिन उस गंजे या चंदले सिर पर सुर्खी माइल सफेद दाग हो, तो ये कोढ़ है जो उसके गंजे या चंदले सिर पर निकला है। सो काहिन उसे मुलाहिजा करे, और अगर वो देखे कि उसके गंजे या चंदले सिर पर वो दाग ऐसा सुर्खी माइल सफेद रंग लिए हुए है जैसा जिल्द के कोढ़ में होता है, तो वो आदमी कोढ़ी है, वो नापाक है, और काहिन उसे जरूर ही नापाक करार दे, क्योंकि वो मर्ज उसके सिर पर है। और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला हो, उसके कपड़े फटे और उसके सिर के बाल बिखरे रहें, और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चिल्ला चिल्ला कर कहे, नापाक नापाक। जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे, वो नापाक रहेगा, और वो है भी नापाक। पस वो अकेला रहा करे, उसका मकान लश्करगाह के बाहर हो, और वो कपड़ा भी जिसमें कोढ़ की बला हो, खा वो ऊन का हो या कैतान का, और वो बला भी खा कैतान या ऊन के कपड़े के ताने में या उसके बाने में हो, या वो चमड़े में हो या चमड़े की बनी हुई किसी चीज में हो। अगर वो बला कपड़े या चमड़े में, कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े की किसी चीज में सब्जी माइल या सुर्खी माइल रंग की हो, तो वो कोढ़ की बला है और काहिन को दिखाई जाए, और काहिन उस बला को देखे और उस चीज को जिसमें वो बला है 7 दिन तक बंद रखे, और 7वें दिन उसको देखे। अगर वो बला कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े पर या चमड़े की बनी हुई किसी चीज पर फैल गई हो, तो वो खा जाने वाला कोढ़ है और नापाक है। और उस ऊन या कैतान के कपड़े को जिसके ताने में या बाने में वो बला है, या चमड़े की उस चीज को जिसमें वो है, जला दे, क्योंकि ये खा जाने वाला कोढ़ है, वो आग में जलाया जाए। और अगर काहिन देखे कि वो बला कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े की किसी चीज में फैली हुई नजर नहीं आती, तो काहिन हुक्म करे कि उस चीज को जिसमें वो बला धोएं, और वो फिर उसे और 7वें दिन तक बंद रखे। और उस बला के धोए जाने के बाद काहिन फिर उसे मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि उस बला का रंग नहीं बदला और वो फैली भी नहीं है, तो वो नापाक है। तो उस कपड़े को आग में जला देना, क्योंकि वो खा जाने वाली बला है, खा उसका फसाद अंदरूनी हो या बैरूनी। और अगर काहिन देखे कि धोने के बाद उस बला की चमक कम हो गई है, तो वो उसे उस कपड़े से या चमड़े से, ताने या बाने से फाड़ कर निकाल फेंके। और अगर वो बला फिर भी कपड़े के ताने या बाने में या चमड़े की चीज में दिखाई दे, तो वो फूट कर निकल रही है। पस तू उस चीज को जिसमें वो बला है आग में जला देना। और अगर उस कपड़े के ताने या बाने में से या चमड़े की चीज में से जिसे तूने धोया है वो बला जाती रही है, तो वो चीज दोबारा धोई जाए और वो पाक ठहरेगी। ऊन या केतान के ताने या बाने में या चमड़े की किसी चीज में अगर कोढ़ की बला हो,
तो उसे पाक या नापाक करार देने के लिए शरह यही है। अहबार 14वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि कोढ़ी के लिए जिस दिन वो पाक करार दिया जाए, ये शरह है कि उसे काहिन के पास ले जाएं, और काहिन लश्करगाह के बाहर जाए, और काहिन खुद कोढ़ी को मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि उसका कोढ़ अच्छा हो गया है, तो काहिन हुक्म दे कि वो जो पाक करार दिया जाने को है, उसके लिए 2 जिंदा पाक परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जुफा लें, और काहिन हुक्म दे कि उनमें से एक परिंदा किसी मिट्टी के बर्तन में बहते हुए पानी के ऊपर ज़िबह किया जाए। फिर वो जिंदा परिंदा को और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़े और जूफा को ले, और उनको और उस जिंदा परिंदा को उस परिंदा के खून में गोता दे जो बहते पानी पर ज़िबह हो चुका है, और उस शख्स पर जो कोढ़ से पाक करार दिया जाने को है 7 बार छिड़क कर उसे पाक करार दे, और जिंदा परिंदा को खुले मैदान में छोड़ दे। और वो जो पाक करार दिया जाएगा अपने कपड़े धोए और सारे बाल मुंडाए और पानी में गुस्ल करे, तब वो पाक ठहरेगा। इसके बाद वो लश्करगाह में आए, पर 7 दिन तक अपने खैमा के बाहर ही रहे, और 7वें रोज अपने सिर के सब बाल और अपनी दाढ़ी और अपने अबरू गर्ज अपने सारे बाल मुंडाए, और अपने कपड़े धोए और पानी में नहाए, तब वो पाक ठहरेगा। और वो 8वें दिन 2 बेऐब नर बर्रे और 1 बेऐब यकसाला मादा बर्रा और नजर की कुर्बानी के लिए एफा के 3/4 हिस्सा के बराबर तेल मिला हुआ मैदा और लौज भर तेल ले। तब वो काहिन जो उसे पाक करार देगा, उस शख्स को जो पाक करार दिया जाएगा, और इन चीजों को जो खुदावंद के हजूर खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर हाजिर करे, और काहिन नर बर्रों में से एक को लेकर जुर्म की कुर्बानी के लिए उसे और उस लौज भर तेल को नजदीक लाए, और उनको हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाए, और उस बर्रा को मकदस में उस जगह ज़िबा करे जहां खता की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी के जानवर ज़िबा किए जाते हैं, क्योंकि जुर्म की कुर्बानी खता की कुर्बानी की तरह काहिन का हिस्सा ठहरेगी, वो नहायत मुकद्दस है। और काहिन जुर्म की कुर्बानी का कुछ खून ले, और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और दाहिने हाथ के अंगूठे पर और दाहिने पांव के अंगूठे पर उसे लगाए, और काहिन उस लौज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली में डाले, और काहिन अपनी दाहिनी उंगली को अपने बाएं हाथ के तेल में डबोए, और खुदावंद के हजूर कुछ तेल 7 बार अपनी उंगली से छिड़के, और काहिन अपने हाथ के बाकी तेल में से कुछ ले, और जो कुछ पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर जुर्म की कुर्बानी के खून के ऊपर लगाए, और जो तेल काहिन के हाथ में बाकी बचे उसे वो उस शख्स के सिर में डाल दे जो पाक करार दिया जाएगा। यूं काहिन उसके लिए खुदावंद के हजूर कफारा दे, और काहिन खता की कुर्बानी भी गुजराने और उसके लिए जो अपनी नापाकी से पाक करार दिया जाएगा कफारा दे। इसके बाद वो सोख्तनी कुर्बानी के जानवर को
ज़िबह करे। फिर काहिन सोख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी को मज़बा पर चढ़ाए। यूं काहिन उसके लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगा। और अगर वो गरीब हो और इतना उसे मकदूर ना हो, तो वो हिलाने के वास्ते जुर्म की कुर्बानी के लिए एक नर बर्रा ले, ताकि उसके लिए कफारा दिया जाए। और नजर की कुर्बानी के लिए एफा के 10वें हिस्सा के बराबर तेल मिला हुआ मैदा और लौज भर तेल, और अपने मकदूर के मुताबिक 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे भी ले, जिनमें से एक तो खता की कुर्बानी के लिए और दूसरा सोखनी कुर्बानी के लिए हो। उन्हें वो 8वें दिन अपने पाक करार दिए जाने के लिए काहिन के पास खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर खुदावंद के हजूर लाए। और काहिन जुर्म की कुर्बानी के बर्रा को और उस लौज भर तेल को लेकर उनको खुदावंद के हजूर हिलाने की कुर्बानी के तौर पर हिलाए। फिर काहिन जुर्म की कुर्बानी के बर्रा को ज़िबा करे, और वो जुर्म की कुर्बानी का कुछ खून लेकर जो शख्स पाक करार दिया जाएगा, उसके दाहिने कान की लौ पर और दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठा पर उसे लगाए। फिर काहिन उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली में डाले, और वो अपने बाएं हाथ के तेल में से कुछ अपनी दाहिनी उंगली से खुदावंद के हजूर 7 बार छिड़के। फिर काहिन कुछ अपने हाथ के तेल में से ले, और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा, उसके दाहिने कान की लौ पर और उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर जुर्म की कुर्बानी के खून की जगह उसे लगाए। और जो तेल काहिन के हाथ में बाकी बचे, वो उसे उस शख्स के सिर में डाल दे जो पाक करार दिया जाएगा, ताकि उसके लिए खुदावंद के हजूर कफारा दिया जाए। फिर वो कुमरियों या कबूतर के बच्चों में से जिन्हें वो ला सका हो, एक को चढ़ाए, यानी जो कुछ उसे मुयस्सर हुआ हो, उसमें से एक को खता की कुर्बानी के तौर पर और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर नजर की कुर्बानी के साथ गुजराने। यूं काहिन उस शख्स के लिए जो पाक करार दिया जाएगा, खुदावंद के हजूर कफारा दे। उस कोड़ी के लिए जो अपने पाक करार दिए जाने के सामान को लाने का मकदूर ना रखता हो, शरह ये है। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि जब तुम मुल्के कैनान में, जिसे मैं तुम्हारी मलकियत किए देता हूँ, दाखिल हो, और मैं तुम्हारे मेरासी मुल्क के किसी घर में कोढ़ की बला को भेजूं, तो उस घर का मालिक जाकर काहिन को खबर दे कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि उस घर में कुछ बला सी है। तब काहिन हुक्म करे कि इससे पेशतर के उस बला को देखने के लिए काहिन वहां जाए, लोग उस घर को खाली करें, ताकि जो कुछ घर में हो वो नापाक ना ठहराया जाए। इसके बाद काहिन घर देखने को अंदर जाए और उस बला को मुलाहजा करे, और अगर देखे कि वो बला उस घर की दीवारों में सब्जी या सुर्खी माइल गहरी लकीरों की सूरत में है और दीवार में सतह के अंदर नजर आती है, तो काहिन घर से बाहर निकलकर घर के दरवाजा पर जाए और घर को 7 दिन के लिए बंद कर दे, और वो 7वें दिन फिर आकर उसे देखे। अगर वो बला घर की दीवारों में फैली हुई नजर आए, तो काहिन हुक्म दे कि उन पत्थरों को जिनमें वो बला है निकाल कर उन्हें शहर के बाहर किसी नापाक जगह में फेंक दें। फिर वो उस घर को अंदर ही अंदर चारों तरफ से खुरचवाए
और उस खुरची हुई मिट्टी को शहर के बाहर किसी नापाक जगह में डालें, और वो उन पत्थरों की जगह और पत्थर लाकर लगाएं, और काहिन ताजा गारे से उस घर की इस्तरकारी कराए। और अगर पत्थरों के निकाले जाने और उस घर के खुरचे और इस्तरकारी कराए जाने के बाद भी वो बला फिर आ जाए और उस घर में फूट निकले, तो काहिन अंदर जाकर मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो बला घर में फैल गई है, तो उस घर में खा जाने वाला कोढ़ है, वो नापाक है। तब वो उस घर को, उसके पत्थरों और लकड़ियों और उसकी सारी मिट्टी को गिरा दे, और वो उनको शहर के बाहर निकालकर किसी नापाक जगह में ले जाए। मां सवाए इसके, अगर कोई उस घर के बंद कर दिए जाने के दिनों में उसके अंदर दाखिल हो, तो वो शाम तक नापाक ठहरेगा। और जो कोई उस घर में सोए, वो अपने कपड़े धो डाले, और जो कोई उस घर में कुछ खाए, वो भी अपने कपड़े धोए। और अगर काहिन अंदर जाकर मुलाहिजा करे और देखे कि घर की इस तरकारी के बाद वो बला उस घर में नहीं फैली, तो वो उस घर को पाक करार दे, क्योंकि वो बला दूर हो गई। और वो उस घर को पाक करार देने के लिए 2 परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा ले, और वो उन परिंदों में से एक को मिट्टी के किसी बर्तन में बहते हुए पानी पर ज़िबा करे। फिर वो देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़े और उस जिंदा परिंदा को लेकर उनको उस ज़िबा किए हुए परिंदा के खून में और उस बहते हुए पानी में गोता दे, और 7 बार उस घर पर छिड़के, और वो उस परिंदे के खून से और बहते हुए पानी और जिंदा परिंदा और देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़े से उस घर को पाक करे, और उस जिंदा परिंदा को शहर के बाहर खुले मैदान में छोड़ दे। यूं वो घर के लिए कफारा दे, तो वो पाक ठहरेगा। कोढ़ की हर किस्म की बला के और साफा के लिए, और कपड़े और घर के कोढ़ के लिए, और वर्म और पिपड़ी और चमकते हुए दाग के लिए शरा ये है, ताकि बताया जाए कि कब वो नापाक और कब पाक करार दिए जाएं। कोढ़ के लिए शरा यही है। अहबार 15वां बाब। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि बनी इस्राएल से कहो कि अगर किसी शख्स को जरियान का मर्ज हो, तो वो जरियान के सबब से नापाक है, और जरियान के सबब से उसकी नापाकी यूं होगी कि खा धात बहती हो या धात का बहना मौकूफ हो गया हो, वो नापाक है। जिस बिस्तर पर जरियान का मरीज सोए, वो बिस्तर नापाक होगा, और जिस चीज पर वो बैठे, वो चीज नापाक होगी। और जो कोई उसके बिस्तर को छुए, वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, और शाम तक नापाक रहे। और जो कोई जरियान के मरीज के जिस्म को छुए, वो भी अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, और शाम तक नापाक रहे। और अगर जरियान का मरीज किसी शख्स पर जो पाक है थूक दे, तो वो शख्स अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, और शाम तक नापाक रहे। और जिस ज़ैन पर जरियान का मरीज सवार हो, वो ज़ैन नापाक होगा। और जो कोई किसी चीज को जो उस मरीज के नीचे रही हो छुए, वो शाम तक नापाक रहे। और जो कोई उन चीजों को उठाए, वो अपने कपड़े धोए
اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جس شخص کو جریان کا مریض بغیر ہاتھ دھوئے چھوئے، وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور مٹی کے جس برتن کو جریان کا مریض چھوئے، وہ توڑ ڈالا جائے، پر 24 برتن پانی سے دھویا جائے۔ اور جب جریان کے مریض کو شفا ہو جائے، تو وہ اپنے پاک ٹھہرنے کے لیے 7 دن گنے۔ اس کے بعد وہ اپنے کپڑے دھوئے اور بہتے ہوئے پانی میں نہائے، تب وہ پاک ہوگا۔ اور 8ویں دن 2 کمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لے کر وہ خداوند کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جائے اور ان کو کاہن کے حوالہ کرے، اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے۔ یوں کاہن اس کے لیے اس کے جریان کے سبب سے خداوند کے حضور کفارہ دے۔ اور اگر کسی مرد کی دھات بہتی ہو تو وہ پانی میں نہائے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جس کپڑے یا چمڑے پر نطفہ لگ جائے، وہ کپڑا یا چمڑا پانی سے دھویا جائے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور وہ عورت بھی جس کے ساتھ مرد صحبت کرے اور منزل ہو، تو وہ دونوں پانی سے غسل کریں اور شام تک ناپاک رہیں۔ اور اگر کسی عورت کو ایسا جریان ہو کہ اسے حیض کا خون آئے، تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گی۔ اور جو کوئی اسے چھوئے، وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ اور جس چیز پر وہ اپنی ناپاکی کی حالت میں سوئے، وہ چیز ناپاک ہوگی۔ اور جس چیز پر بیٹھے، وہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے، وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جو کوئی اس چیز کو جس پر وہ بیٹھی ہو چھوئے، وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور اگر اس کا خون اس کے بستر پر یا جس چیز پر وہ بیٹھی ہو اس پر لگا ہوا ہو، اور اس وقت کوئی اس چیز کو چھوئے، تو وہ شام تک ناپاک رہے۔ اور اگر مرد اس کے ساتھ صحبت کرے اور اس کے حیض کا خون اسے لگ جائے، تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا۔ اور ہر ایک بستر جس پر وہ مرد سوئے گا ناپاک ہوگا۔ اور اگر کسی عورت کے ایام حیض کو چھوڑ کر یوں بہت دنوں تک خون آئے، یا حیض کی مدت گزر جانے پر بھی خون جاری رہے، تو جب تک اس کو یہ میلا خون آتا رہے گا، تب تک وہ ایسی ہی رہے گی جیسی حیض کے دنوں میں رہتی ہے۔ وہ ناپاک ہے، اور اس جریان خون کے کل ایام میں جس جس بستر پر وہ سوئے گی، وہ حیض کے بستر کی طرح ناپاک ہوگا۔ اور جس جس چیز پر وہ بیٹھے گی، وہ چیز حیض کی نجاست کی طرح ناپاک ہوگی۔ اور جو کوئی ان چیزوں کو چھوئے، وہ ناپاک ہوگا۔ وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جب وہ اپنے جریان سے شفا پا جائے، تو 7 دن گنے، تب اس کے بعد وہ پاک ٹھہرے گی۔ اور 8ویں دن وہ 2 کمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کاہن کے پاس لائے، اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے۔ یوں کاہن اس کو ناپاک خون کے جریان کے لیے خداوند کے حضور اس کی طرف سے کفارہ دے۔
इस तरीक से तुम बनी इसराइल को उनकी निजासत से अलग रखना, ताकि वो मेरे मकदस को जो उनके दरमियान है नापाक करने की वजह से अपनी निजासत में हलाक ना हों। उसके लिए जिसे जरियान का मर्ज हो, और उसके लिए जिसकी धात बहती हो, और वो उसके बायस नापाक हो जाए, और उसके लिए जो हैज से हो, और उस मर्द और औरत के लिए जिनको जरियान का मर्ज हो, और उस मर्द के लिए जो नापाक औरत के साथ सोहबत करे, शरा यही है। अहबार 16वां बाब। और हारून के 2 बेटों की वफात के बाद, जब वो खुदावंद के नजदीक आए और मर गए, खुदावंद मूसा से हम कलाम हुआ, और खुदावंद ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि वो हर वक्त पर्दा के अंदर के पाक तरीन मुकाम में सरपोश के पास जो संदूक के ऊपर है ना आया करे, ताकि वो मर न जाए, क्योंकि मैं सरपोश पर अबर में दिखाई दूंगा। और हारून पाक तरीन मुकाम में से इस तरह आए कि खता की कुर्बानी के लिए एक बछड़ा और सौख्तनी कुर्बानी के लिए एक मेंढा लाए, और वो कितान का मुकद्दस कुर्ता पहने, और उसके तन पर कितान का पाजामा हो, और कितान के कमरबंद से उसकी कमर कसी हुई हो, और कितान ही का अमामा उसके सर पर बंधा हो। ये मुकद्दस लिबास हैं, और वो इनको पानी से नहाकर पहने। और बनी इसराइल की जमायत से खता की कुर्बानी के लिए 2 बकरे और सौख्तनी कुर्बानी के लिए एक मेंढा ले। और हारून खता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है गुजरान कर अपने और अपने घर के लिए कफारा दे। फिर उन दोनों बकरों को लेकर उनको खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर खुदावंद के हजूर खड़ा करे, और हारून उन दोनों बकरों पर छिटियां डाले, एक छेटी खुदावंद के लिए और दूसरी अज़ाज़ाइल के लिए हो। और जिस बकरे पर खुदावंद के नाम की छटी निकले, उसे हारून लेकर खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए। लेकिन जिस बकरे पर अज़ाज़ाइल के नाम की छटी निकले, वो खुदावंद के हजूर जिंदा खड़ा किया जाए, ताकि उससे कफारा दिया जाए, और वो अज़ाज़ाइल के लिए बियाबान में छोड़ दिया जाए। और हारून खता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है आगे लाकर अपने और अपने घर के लिए कफारा दे, और उस बछड़े को जो उसकी तरफ से खता की कुर्बानी के लिए ज़िबा करे। और वो एक बखूरदान को ले, जिसमें खुदावंद के मज़बा पर की आग के अंगारे भरे हों, और अपनी मुट्ठियां बारीक खुशबूदार बखूर से भर ले, और उसे पर्दा के अंदर लाए, और उस बखूर को खुदावंद के हुजूर आग में डाले, ताकि बखूर का धुआं सरपोश को जो शहादत के संदूक के ऊपर है छुपा ले, वो हलाक ना हो। फिर वो उस बछड़े का कुछ खून लेकर उसे अपनी उंगली से मशरिक की तरफ सरपोश के ऊपर छिड़के, और सरपोश के आगे भी कुछ खून अपनी उंगली से 7 बार छिड़के। फिर वो खता की कुर्बानी के उस बकरे को ज़िबा करे जो जमायत की तरफ से है, और उसके खून को पर्दा के अंदर लाकर जो कुछ उसने बछड़े के खून से किया था, वही इससे भी करे, और उसे सरपोश के ऊपर और उसके सामने छिड़के। और बनी इसराइल की सारी नजासतों और गुनाहों और खताओं के सबब से पाक तरीन मुकाम के लिए कफारा दे। और ऐसा ही वो खैमाए इज्तमा के लिए भी करे,
جو ان کے ساتھ ان کی نجاستوں کے درمیان رہتا ہے، اور جب وہ کفارہ دینے کو پاک ترین مقام کے اندر جائے تو جب تک وہ اپنے اور اپنے گھرانے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے کر باہر نہ آ جائے، اس وقت تک کوئی آدمی خیمہ اجتماع کے اندر نہ رہے۔ پھر وہ نکل کر اس مذبح کے پاس جو خداوند کے حضور ہے اور اس کے لیے کفارہ دے، اور اس بچڑے اور بکرے کا تھوڑا تھوڑا سا خون لے کر مذبح کے سینگوں پر گردا گرد لگائے، اور کچھ خون اس کے اوپر 7 بار اپنی انگلی سے چھڑکے، اور اسے بنی اسرائیل کی نجاستوں سے پاک اور مقدس کرے۔ اور جب وہ پاک ترین مقام اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے چکے تو اس زندہ بکرے کو آگے لائے، اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے، اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھجوا دے، اور وہ بکرا ان کی سب بدکاریاں اپنے اوپر لادے ہوئے کسی ویرانہ میں لے جائے گا، سو وہ اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دے۔ پھر ہارون خیمہ اجتماع میں آ کر کتان کے سارے لباس کو جسے اس نے پاک ترین مقام میں جاتے وقت پہنا تھا اتارے، اور اس کو وہیں رہنے دے۔ پھر وہ کسی پاک جگہ میں پانی سے غسل کر کے اپنے کپڑے پہن لے، اور باہر آ کر اپنی سوکھنی قربانی اور جماعت کی سوکھنی قربانی گزرانے، اور اپنے لیے اور جماعت کے لیے کفارہ دے، اور خطا کی قربانی کی چربی کو مذبح پر جلائے۔ اور جو آدمی بکرے کو عزازائل کے لیے چھوڑ کر آئے، وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو، اور خطا کی قربانی کے بچڑے کو اور خطا کی قربانی کے بکرے کو، جن کا خون پاک ترین مقام میں کفارہ کے لیے پہنچایا جائے، ان کو وہ لشکرگاہ سے باہر لے جائیں، اور ان کی کھال اور گوشت اور فضلات کو آگ میں جلا دیں، اور جو ان کو جلائے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو۔ اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو، کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا۔ تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، یہ دائمی قانون ہے۔ اور جو اپنے باپ کی جگہ کاہن ہونے کے لیے مسا اور مخصوص کیا جائے، وہ کاہن کفارہ دیا کرے، یعنی کتان کے مقدس لباس کو پہن کر، اور مقدس کے لیے کفارہ دے، اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے، اور کاہنوں اور جماعت کے سب لوگوں کے لیے کفارہ دے۔ سو یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بنی اسرائیل کے واسطے سال میں ایک دفعہ ان کے سب گناہوں کا کفارہ دو۔ اور اس نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ اخبار 17واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں سے اور سب بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند نے یہ حکم دیا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کا جو کوئی شخص
बैल या बर्रा या बकरे को खा लश्करगाह में या लश्करगाह के बाहर ज़िबा करके उसे खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर खुदावंद के मस्कन के आगे खुदावंद के हजूर चढ़ाने को ना ले जाए। उस शख्स पर खून का इल्जाम होगा कि उसने खून किया है, और वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाए। इससे मकसूद ये है कि बनी इस्राएल अपनी कुर्बानियां, जिनको वो खुले मैदान में ज़िबा करते हैं, उन्हें खुदावंद के हजूर खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर काहिन के पास लाएं और उनको खुदावंद के हजूर सलामती के ज़बीहों के तौर पर गुजराने, और काहिन उस खून को खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर खुदावंद के मज़बा के ऊपर छिड़के और चर्बी को जलाए, ताकि खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू हो। और आइंदा कभी वो उन बकरों के लिए जिनके पैरों होकर वो जनाकार ठहरे हैं, अपनी कुर्बानियां ना गुजराने। उनके लिए नस्ल दर नस्ल ये दायमी कानून होगा। सो तू उनसे कह दे कि इस्राएल के घराने का या उन परदेसियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं, जो कोई सोख्तनी कुर्बानी या कोई ज़बीहा गुजरान कर उसे खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर खुदावंद के हजूर चढ़ाने को ना लाए, वो अपने लोगों में से काट डाला जाए। और इस्राएल के घराने का या उन परदेसियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं, जो कोई किसी तरह का खून खाए, मैं उस खून खाने वाले के खिलाफ हूँगा और उसे उसके लोगों में से काट डालूंगा, क्योंकि जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफ़ारा के लिए उसे तुमको दिया है, कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफ़ारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफ़ारा देता है। इसीलिए मैंने बनी इस्राएल से कहा है कि तुम में से कोई शख्स खून कभी न खाए, और न कोई परदेसी जो तुम में बूदोबाश करता हो कभी खून को खाए। और बनी इस्राएल में से या उन परदेसियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं, जो कोई शिकार में ऐसे जानवर या परिंदा को पकड़े जिसको खाना ठीक है, तो वो उसके खून को निकालकर उसे मिट्टी से ढांक दे, क्योंकि जिसकी जान जो है वो उसका खून है, जो उसकी जान के साथ एक है। इसीलिए मैंने बनी इस्राएल को हुक्म किया है कि तुम किसी किस्म के जानवर का खून ना खाना, क्योंकि हर जानवर की जान उसका खून ही है। जो कोई उसे खाए वो काट डाला जाएगा। और जो शख्स मुर्दार को या दरिंदा के फाड़े हुए जानवर को खाए, वो खा देसी हो या परदेसी, अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे, तब वो पाक होगा। लेकिन अगर वो उनको ना धोए और ना गुस्ल करे, तो उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। अहबार 18वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। तुम मुल्के मिस्र के से काम जिसमें तुम रहते थे ना करना, और मुल्के कैनान के से भी जहाँ मैं तुम्हें लिए जाता हूँ ना करना, और ना उनकी रस्मों पर चलना। तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आयन को मानकर उन पर चलना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। सो तुम मेरे आयन और अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। मैं खुदावंद हूँ। तुम में से कोई अपनी किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए। मैं खुदावंद हूँ। तू अपनी माँ के बदन को
جو تیرے باپ کا بدن ہے بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیری ماں ہے۔ تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنے باپ کی بیوی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کا بدن ہے۔ تو اپنی بہن کے بدن کو چاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہو، چاہے تیری ماں کی، اور خواہ وہ گھر میں پیدا ہوئی ہو، خواہ وہ اور کہیں، بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی پوتی یا نواسی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ ان کا بدن تو تیرا ہی بدن ہے۔ تیرے باپ کی بیوی کی بیٹی جو تیرے باپ سے پیدا ہوئی ہے تیری بہن ہے، تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی پھپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کی قریبی رشتہ دار ہے۔ تو اپنی خالہ کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیری ماں کی قریبی رشتہ دار ہے۔ تو اپنے باپ کے بھائی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، یعنی اس کی بیوی کے پاس نہ جانا، وہ تیری چچی ہے۔ تو اپنی بہو کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے، سو تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی بھاوج کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بھائی کا بدن ہے۔ تو کسی عورت اور اس کی بیٹی دونوں کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، اور نہ تو اس عورت کی پوتی یا نواسی سے بیاہ کر کے ان میں سے کسی کے بدن کو بے پردہ کرنا، کیونکہ وہ دونوں اس عورت کی قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہ بڑی خباثت ہے۔ تو اپنی سالی سے بیاہ کر کے اسے اپنی بیوی کی سوکن نہ بنانا، کہ دوسری کے جیتے جی اس کے بدن کو بھی بے پردہ کرے۔ اور تو عورت کے پاس جب تک وہ حیض کے سبب سے ناپاک ہے اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جانا، اور تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے اپنے ہمسائے کی بیوی سے صحبت نہ کرنا۔ تو اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی خاطر آگ میں سے گزارنے کے لیے نہ دینا، اور نہ اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرانا۔ میں خداوند ہوں۔ تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے، یہ نہایت مکروہ کام ہے۔ تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے کسی جانور سے صحبت نہ کرنا، اور نہ کوئی عورت کسی جانور سے ہم صحبت ہونے کے لیے اس کے آگے کھڑی ہو، کیونکہ وہ اوندھی بات ہے۔ تم ان کاموں میں سے کسی میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا، کیونکہ جن قوموں کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں وہ ان سب کاموں کے سبب سے آلودہ ہیں، اور ان کا ملک بھی آلودہ ہو گیا ہے۔ اس لیے میں اس کی بدکاری کی سزا اسے دیتا ہوں، ایسا کہ وہ اپنے باشندوں کو اگلے دیتا ہے۔ لہذا تم میرے آئین اور میرے احکام کو ماننا، اور تم میں سے کوئی، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، جو تم میں بود و باش رکھتا ہو، ان مکروہات میں سے کسی کام کو نہ کرے، کیونکہ اس ملک کے باشندوں نے جو تم سے پہلے تھے یہ سب مکروہ کام کیے ہیں، اور ملک آلودہ ہو گیا ہے۔ سو ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس ملک نے اس قوم کو جو تم سے پہلے وہاں تھی اگل دیا، اسی طرح تم کو بھی جب تم اسے آلودہ کرو تو اگل دے، کیونکہ جو ان مکروہ کاموں میں سے کسی کو کرے گا وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اس لیے میری شریعت کو ماننا اور یہ مکروہ رسمیں جو تم سے پہلے ادا کی جاتی تھیں، ان میں سے کسی کو عمل میں نہ لانا، اور ان میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ احبار 19واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔
تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے، اور تم میرے سبتوں کو ماننا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم بتوں کی طرف رجوع نہ ہونا، اور نہ اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتا بنانا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور جب تم خداوند کے حضور سلامتی کے ذبیحے گزرانو، تو ان کو اس طرح گزراننا کہ تم مقبول ہو۔ اور جس دن اسے گزرانو، اس دن اور دوسرے دن وہ کھایا جائے، اور اگر تیسرے دن تک کچھ بچا رہ جائے تو وہ آگ میں جلا دیا جائے، اور اگر وہ ذرا بھی تیسرے دن کھایا جائے تو مکروہ ٹھہرے گا اور مقبول نہ ہوگا، بلکہ جو کوئی اسے کھائے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، کیونکہ اس نے خداوند کی پاک چیز کو نجس کیا۔ سو وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو، تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا پورا نہ کاٹنا، اور نہ کٹائی کی گری پڑی بالوں کو چن لینا۔ اور تو اپنے انگورستان کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا، اور نہ اپنے انگورستان کے گرے ہوئے دانوں کو جمع کرنا۔ ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم چوری نہ کرنا اور نہ دغا دینا، اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا۔ اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا، جس سے تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرائے۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا، نہ اسے لوٹنا۔ مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے۔ تو بہرے کو نہ کوسنا، اور نہ اندھے کے آگے ٹھوکر کھلانے کی چیز کو دھرنا، بلکہ اپنے خدا سے ڈرنا۔ میں خداوند ہوں۔ تم فیصلہ میں ناراستی نہ کرنا، نہ تو غریب کی رعایت کرنا، اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ، بلکہ راستی کے ساتھ اپنے ہمسایہ کا انصاف کرنا۔ تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لترا پن نہ کرتے پھرنا، اور نہ اپنے ہمسایہ کا خون کرنے پر آمادہ ہونا۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا، اور اپنے ہمسایہ کو ضرور ڈانٹتے بھی رہنا، تاکہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ تم میری شریعتوں کو ماننا۔ تو اپنے چوپایوں کو غیر جن سے بھروانے نہ دینا، اور اپنے کھیت میں 2 قسم کے بیج ایک ساتھ نہ بونا، اور نہ تجھ پر 2 قسم کے ملے جلے تار کا کپڑا ہو۔ اگر کوئی ایسی عورت سے صحبت کرے جو لونڈی اور کسی شخص کی منگیتر ہو، اور نہ تو اس کا فدیہ ہی دیا گیا ہو اور نہ وہ آزاد کی گئی ہو، تو ان دونوں کو سزا ملے، لیکن وہ جان سے مارے نہ جائیں، اس لیے کہ وہ عورت آزاد نہ تھی۔ اور وہ آدمی اپنے جرم کی قربانی کے لیے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور ایک مینڈھا لائے، کہ وہ اس کے جرم کی قربانی ہو، اور کاہن اس کے جرم کی قربانی کے مینڈھے سے اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے۔ تب جو خطا اس نے کی ہے وہ اسے معاف کی جائے گی۔ اور جب تم اس ملک میں پہنچ کر قسم قسم کے پھل کے درخت لگاؤ، تو تم ان کے پھل کو گویا نامختون سمجھنا۔ وہ تمہارے لیے 3 برس تک نامختون کے برابر ہوں اور کھائے نہ جائیں، اور چوتھے سال ان کا سارا پھل خداوند کی تمجید کرنے کے لیے مقدس ہوگا۔ تب 5ویں سال سے
ان کا پھل کھانا، تاکہ وہ تمہارے لیے افراط کے ساتھ پیدا ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا، اور نہ جادو منتر کرنا، نہ شگون نکالنا۔ تم اپنے اپنے سر کے گوشوں کو بال کاٹ کر گول نہ کرنا، اور نہ تو اپنی داڑھی کے کونوں کو بگاڑنا۔ تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا، اور نہ اپنے اوپر کچھ گندوانا۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنی بیٹی کو کسبی بنا کر ناپاک نہ ہونے دینا، تا ایسا نہ ہو کہ ملک میں رنڈی بازی پھیل جائے اور سارا ملک بدکاری سے بھر جائے۔ تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں، تم ان کے پاس نہ جانا، اور نہ ان کے طالب ہونا کہ وہ تم کو نجس بنا دیں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ جن کے سر کے بال سفید ہیں، تو ان کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا، اور بڑے بوڑھے کا ادب کرنا، اور اپنے خدا سے ڈرنا۔ میں خداوند ہوں۔ اور اگر کوئی پردیسی تیرے ساتھ تمہارے ملک میں بود و باش کرتا ہو، تو تم اسے آزار نہ پہنچانا، بلکہ جو پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہو، اسے دیسی کی مانند سمجھنا، بلکہ تو اس سے اپنی مانند محبت کرنا، اس لیے کہ تم ملک مصر میں پردیسی تھے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم انصاف اور پامائش اور وزن اور پیمانہ میں ناراستی نہ کرنا۔ ٹھیک ترازو، ٹھیک باٹ، پورا ایفا اور پورا ایہن رکھنا۔ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا، میں ہی ہوں، خداوند تمہارا خدا۔ سو تم میرے سب آئین اور سب احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ احبار 20واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دے کہ بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کرے، وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اہل ملک اسے سنگسار کریں، اور میں بھی اس شخص کا مخالف ہوں گا، اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، اس لیے کہ اس نے اپنی اولاد کو مولک کی نظر کر کے میرے مقدس اور میرے پاک نام کو ناپاک ٹھہرایا۔ اور اگر اس وقت جب وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کرے، اہل ملک اس شخص کی طرف سے چشم پوشی کر کے اسے جان سے نہ ماریں، تو میں خود اس شخص کا اور اس کے گھرانے کا مخالف ہو کر اس کو اور ان سبوں کو جو اس کی پیروی میں زناکار بنے اور مولک کے ساتھ زنا کریں، ان کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اور جو شخص جنات کے یاروں اور جادوگروں کے پاس جائے کہ ان کی پیروی میں زنا کرے، میں اس کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اس لیے تم اپنے آپ کو مقدس کرو اور پاک رہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اور تم میرے آئین کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ میں خداوند ہوں جو تم کو مقدس کرتا ہوں۔ اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے، وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اس نے اپنے باپ یا ماں پر لعنت کی ہے، سو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا۔ اور جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے، وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں۔ اور جو شخص اپنی سوتیلی ماں سے صحبت کرے،
उसने अपने बाप के बदन को बेपर्दा किया, वो दोनों जरूर जान से मारे जाएं। उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई शख्स अपनी बहू से सोहबत करे तो वो दोनों जरूर जान से मारे जाएं। उन्होंने औंधी बात की है, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई मर्द से सोहबत करे जैसे औरत से करते हैं, तो उन दोनों ने नहायत मकरू काम किया है, सो वो दोनों जरूर जान से मारे जाएं। उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई शख्स अपनी बीवी और अपनी सास दोनों को रखे तो ये बड़ी खबासत है, सो वो आदमी और वो औरतें तीनों के तीनों जला दिए जाएं, ताकि तुम्हारे दरमियान खबासत ना रहे। और अगर कोई मर्द किसी जानवर से जामा करे तो वो जरूर जान से मारा जाए, और तुम उस जानवर को भी मार डालना। और अगर कोई औरत किसी जानवर के पास जाए और उससे हम सोहबत हो, तो तू उस औरत और जानवर दोनों को मार डालना। वो जरूर जान से मारे जाएं। उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई मर्द अपनी बहन को, जो उसके बाप की या उसकी माँ की बेटी हो, लेकर उसका बदन देखे और उसकी बहन उसका बदन देखे, तो ये शर्म की बात है। वो दोनों अपनी कौम के लोगों की आंखों के सामने कत्ल किए जाएं। उसने अपनी बहन के बदन को बेपर्दा किया, उसका गुनाह उसी के सिर लगेगा। और अगर मर्द उस औरत से जो कपड़ों से हो सोहबत करके उसके बदन को बेपर्दा करे, तो उसने उसका चश्मा खोला और उस औरत ने अपने खून का चश्मा खुलवाया, सो वो दोनों अपनी कौम में से काट डाले जाएं। और तू अपनी खाला या फुफ्फी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि जो ऐसा करे उसने अपनी करीबी रिश्तेदार को बेपर्दा किया, सो दोनों का गुनाह उन्हीं के सिर लगेगा। और अगर कोई अपनी चच्ची या ताई से सोहबत करे, तो उसने अपने चचा या ताऊ के बदन को बेपर्दा किया, सो उनका गुनाह उनके सिर लगेगा। वो लावल्द मरेंगे। अगर कोई शख्स अपने भाई की बीवी को रखे तो ये नजासत है, उसने अपने भाई के बदन को बेपर्दा किया, वो लावल्द रहेंगे। सो मेरे सब आइन और अहकाम मानना और उन पर अमल करना, ताकि वो मुल्क जिसमें मैं तुमको बसाने के लिए ले जाता हूँ तुमको उगल ना दे। तुम उन कौमों के दस्तूरों पर जिनको मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ मत चलना, क्योंकि उन्होंने ये सब काम किए, इसलिए मुझे उनसे नफरत हो गई। पर मैंने तुमसे कहा है कि तुम उनके मुल्क के वारिस होगे, और मैं तुमको वो मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है तुम्हारी मलकियत होने के लिए दूंगा। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जिसने तुमको और कौमों से अलग किया है। सो तुम पाक और नापाक चौपायों में और पाक और नापाक परिंदों में फर्क करना। और तुम किसी जानवर या परिंदे या जमीन पर के रेंगने वाले जानदार से, जिनको मैंने तुम्हारे लिए नापाक ठहरा कर अलग किया है, अपने आप को मकरू ना बना लेना। और तुम मेरे लिए पाक बने रहना, क्योंकि मैं जो खुदावंद हूँ पाक हूँ, और मैंने तुमको और कौमों से अलग किया है ताकि तुम मेरे ही रहो। और वो मर्द या औरत जिसमें जिन हो या वो जादूगर हो, तो वो जरूर जान से मारा जाए। ऐसों को लोग संसार करें, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। अहबार 21वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून के बेटों से जो काहिन है कह
کہ اپنے قبیلہ کے مردہ کے سبب سے کوئی اپنے آپ کو نجس نہ کر لے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے سبب سے، جیسے اپنی ماں کے سبب سے، اور اپنے باپ کے سبب سے، اور اپنے بیٹے بیٹی کے سبب سے، اور اپنے بھائی کے سبب سے، اور اپنی سگی کنواری بہن کے سبب سے، جس نے شوہر نہ کیا ہو، ان کی خاطر وہ اپنے کو نجس کر سکتا ہے، چونکہ وہ اپنے لوگوں میں سردار ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو ایسا آلودہ نہ کرے کہ ناپاک ہو جائے۔ وہ نہ اپنا سر ان کی خاطر بیچ سے گھنٹوائیں، اور نہ اپنی داڑھی کے کونے منڈوائیں، اور نہ اپنے کو زخمی کریں۔ وہ اپنے خدا کے لیے پاک بنے رہیں، اور اپنے خدا کے نام کو بے حرمت نہ کریں، کیونکہ وہ خداوند کی آتشین قربانیاں جو ان کے خدا کی غذا ہیں گزرانتے ہیں، اس لیے وہ پاک رہیں۔ وہ کسی فحشہ یا ناپاک عورت سے بیاہ نہ کریں، اور نہ اس عورت سے بیاہ کریں جسے اس کے شوہر نے طلاق دی ہو، کیونکہ کاہن اپنے خدا کے لیے مقدس ہے۔ پس تو کاہن کو مقدس جاننا، کیونکہ وہ تیرے خدا کی غذا گزرانتا ہے، سو وہ تیری نظر میں مقدس ٹھہرے، کیونکہ میں خداوند جو تم کو مقدس کرتا ہوں قدوس ہوں۔ اور اگر کاہن کی بیٹی فحشہ بن کر اپنے آپ کو ناپاک کرے تو وہ اپنے باپ کو ناپاک ٹھہراتی ہے، وہ عورت آگ میں جلائی جائے۔ اور وہ جو اپنے بھائیوں کے درمیان سردار کاہن ہو، جس کے سر پر مسح کرنے کا تیل ڈالا گیا، اور جو پاک لباس پہننے کے لیے مخصوص کیا گیا، وہ اپنے سر کے بال بکھرنے نہ دے، اور اپنے کپڑے نہ پھاڑے، وہ کسی مردہ کے پاس نہ جائے، اور نہ اپنے باپ یا ماں کی خاطر اپنے آپ کو نجس کرے، اور وہ مقدس کے باہر بھی نہ نکلے، اور نہ اپنے خدا کے مقدس کو بے حرمت کرے، کیونکہ اس کے خدا کے مسح کرنے کے تیل کا تاج اس پر ہے۔ میں خداوند ہوں۔ اور وہ کنواری عورت سے بیاہ کرے، جو بیوہ یا مطلقہ یا ناپاک عورت یا فحشہ ہو، ان سے وہ بیاہ نہ کرے، بلکہ وہ اپنی ہی قوم کی کنواری کو بیاہ لے، اور وہ اپنے تخم کو اپنی قوم میں ناپاک نہ ٹھہرائے، کیونکہ میں خداوند ہوں جو اسے مقدس کرتا ہوں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ دے کہ تیری نسل میں پشت در پشت اگر کوئی کسی طرح کا عیب رکھتا ہو تو وہ اپنے خدا کی غذا گزراننے کو نزدیک نہ آئے، خواہ کوئی ہو جس میں عیب ہو وہ نزدیک نہ آئے، خواہ وہ اندھا ہو یا لنگڑا یا نک چپٹا ہو یا زائد الاعضا، یا اس کا پاؤں ٹوٹا ہو یا ہاتھ ٹوٹا ہو، یا وہ کبڑا یا بونا ہو، یا اس کی آنکھ میں کچھ نقص ہو، یا کھجلی بھرا ہو، یا اس کے پیپڑیاں ہوں، یا اس کے خصیے پچکے ہوں۔ ہارون کاہن کی نسل میں سے کوئی جو عیب دار ہو، خداوند کی آتشین قربانیاں گزراننے کو نزدیک نہ آئے، وہ عیب دار ہے، وہ ہرگز اپنے خدا کی غذا گزراننے کو پاس نہ آئے۔ وہ اپنے خدا کی نہایت ہی مقدس اور پاک دونوں طرح کی روٹی کھائے، لیکن پردہ کے اندر داخل نہ ہو، نہ مذبح کے پاس آئے، اس لیے کہ وہ عیب دار ہے، تا ایسا نہ ہو کہ وہ میرے مقدس مقاموں کو بے حرمت کرے۔
क्योंकि मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूं। तो मूसा ने हारून और उसके बेटों और सब बनी इस्राएल से ये बातें कहीं। अहबार 22वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से कह कि वो बनी इस्राएल की पाक चीजों से, जिनको वो मेरे लिए मुकद्दस करते हैं, अपने आप को बचाए रखें और मेरे पाक नाम को बेहुरमत ना करें। मैं खुदावंद हूं। उनको कह दे कि तुम्हारी पुश्त दर पुश्त जो कोई तुम्हारी नस्ल में से अपनी नापाकी की हालत में उन पाक चीजों के पास जाए, जिनको बनी इस्राएल खुदावंद के लिए मुकद्दस करते हैं, वो शख्स मेरे हजूर से काट डाला जाएगा। मैं खुदावंद हूं। हारून की नस्ल में जो कोढ़ी या जरियान का मरीज हो, वो जब तक पाक ना हो जाए, पाक चीजों में से कुछ ना खाए। और जो कोई ऐसी चीज को जो मुर्दा के सबब से नापाक हो गई है, या उस शख्स को जिसकी धात बहती हो छुए, या जो कोई किसी रेंगने वाले जानदार को जिसके छूने से वो नापाक हो सकता है छुए, या किसी ऐसे शख्स को छुए जिससे उसकी नापाकी खा वो किसी किस्म की हो उसको भी लग सकती हो, तो वो आदमी जो इनमें से किसी को छुए शाम तक नापाक रहेगा, और जब तक पानी से गुस्ल ना कर ले, पाक चीजों में से कुछ ना खाए। और वो उस वक्त पाक ठहरेगा जब आफताब गरूब हो जाए। इसके बाद वो पाक चीजों में से खाए, क्योंकि ये उसकी खुराक है। और मुर्दार या दरिंदा के फाड़े हुए जानवर को खाने से वो अपने आप को नजस ना कर ले। मैं खुदावंद हूं। इसलिए वो मेरी शरह को माने, ता न हो कि उसके सबब से उनके सर गुनाह लगे और उसकी बेहुरमती करने की वजह से वो मर भी जाएं। मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूं। कोई अजनबी पाक चीज को ना खाने पाए, खा वो काहिन ही के हाथ ठहरा हो या उसका नौकर हो, तो भी वो कोई पाक चीज ना खाए। लेकिन वो जिसे काहिन ने अपने जर से खरीदा हो, उसे खा सकता है। और वो जो उसके घर में पैदा हुए हों, वो भी उसके खाने में से खाएं। अगर काहिन की बेटी किसी अजनबी से ब्याही गई हो, तो वो पाक चीजों की कुर्बानी में से कुछ ना खाए। पर अगर काहिन की बेटी बेवा हो जाए या मुतलका हो और बेऔलाद हो और लड़कपन के दिनों की तरह अपने बाप के घर में फिर आकर रहे, तो वो अपने बाप के खाने में से खाए, लेकिन कोई अजनबी उसे ना खाए। और अगर कोई नादानिस्ता पाक चीज को खा जाए, तो वो उसके 5वें हिस्सा के बराबर अपने पास से उसमें मिलाकर वो पाक चीज काहिन को दे। और वो बनी इस्राएल की पाक चीजों को, जिनको वो खुदावन की नजर करते हों, बेहुरमत करके उनके सिर उस गुनाह का जुर्म ना ला दें जो उनकी पाक चीजों के खाने से होगा, क्योंकि मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूं। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों और सब बनी इस्राएल से कह कि इस्राएल के घराने का या उन परदेसियों में से जो इस्राएलियों के दरमियान रहते हैं, जो कोई शख्स अपनी कुर्बानी लाए, खा वो कोई मन्नत की कुर्बानी हो या रजा की कुर्बानी, जिसे वो सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराना करते हैं,
تو اپنے مقبول ہونے کے لیے تم بیلوں یا بروں یا بکروں میں سے بے عیب نہ چڑھانا، اور جس میں عیب ہو اسے نہ چڑھانا، کیونکہ وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوگا۔ اور جو کوئی اپنی منت پوری کرنے کے لیے یا رضا کی قربانی کے طور پر گائے، بیل یا بھیڑ بکری میں سے سلامتی کا ذبیحہ خداوند کے حضور گزرانے، تو وہ جانور مقبول ٹھہرنے کے لیے بے عیب ہو۔ اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ جو اندھا یا شکستہ عضو یا لولا ہو، یا جس کے رسولی یا کھجلی یا پپڑیاں ہوں، ایسوں کو خداوند کے حضور نہ چڑھانا، اور نہ مذبح پر ان کی آتشین قربانی خداوند کے حضور گزراننا۔ جس بچڑے یا برے کا کوئی عضو زیادہ یا کم ہو، اسے تو رضا کی قربانی کے طور پر گزران سکتا ہے، پر منت پوری کرنے کے لیے وہ مقبول نہ ہوگا۔ جس جانور کے خصیے کچلے ہوئے ہوں، یا چور کیے ہوئے، یا ٹوٹے یا کٹے ہوئے ہوں، اسے تم خداوند کے حضور نہ چڑھانا، اور نہ اپنے ملک میں ایسا کام کرنا۔ اور نہ ان میں سے کسی کو لے کر تم اپنے خدا کی غذا پردیسی یا اجنبی کے ہاتھ سے چڑھوانا، کیونکہ ان کا بگاڑ ان میں موجود ہوتا ہے، ان میں عیب ہے، سو وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، جس وقت بچڑا یا بھیڑ یا بکری کا بچہ پیدا ہو، تو 7 دن تک وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، اور 8ویں دن سے وہ اس کے بعد سے وہ خداوند کی آتشین قربانی کے لیے مقبول ہوگا۔ اور خواہ گائے ہو یا بھیڑ بکری، تم اسے اور اس کے بچے دونوں کو ایک ہی دن ذبح نہ کرنا۔ اور جب تم خداوند کے شکرانہ کا ذبیحہ قربانی کرو، تو اسے اس طرح قربانی کرنا کہ تم مقبول ٹھہرو، اور وہ اسی دن کھا بھی لیا جائے۔ تم اس میں سے کچھ بھی دوسرے دن کی صبح تک باقی نہ چھوڑنا۔ میں خداوند ہوں، سو تم میرے حکموں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ تم میرے پاک نام کو ناپاک نہ ٹھہرانا، کیونکہ میں بنی اسرائیل کے درمیان ضرور ہی پاک مانا جاؤں گا۔ میں خداوند تمہارا مقدس کرنے والا ہوں، جو تم کو ملک مصر سے نکال لایا ہوں، تاکہ تمہارا خدا بنا رہوں۔ میں خداوند ہوں۔ اخبار 23واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کو تم مقدس مجمعوں کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ عیدیں یہ ہیں: 6 دن کام کاج کیا جائے، پر 7واں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے۔ اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا۔ وہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں خداوند کا سبت ہے۔ خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجمعوں کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا، سو یہ ہیں: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فسح ہوا کرے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو۔ اس میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا۔ پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور 7 دن تم خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا، اور 7ویں دن پھر مقدس مجمع ہو۔ اس روز تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا،
بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو، تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پولا کاہن کے پاس لانا، اور وہ اسے خداوند کے حضور ہلائے تاکہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو، اور کاہن اسے سبت کے دوسرے دن صبح کو ہلائے، اور جس دن تم پولے کو ہلاؤ اسی دن ایک نر بے عیب یکسالہ برہ سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزراننا، اور اس کے ساتھ نذر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا ایفا کے 2/2 حصہ کے برابر ہو، تاکہ وہ آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کے لیے جلائی جائے، اور اس کے ساتھ مے کا تپاون ہین کے 1/4 حصہ کے برابر مے لے کر کرنا۔ اور جب تک تم اپنے خدا کے لیے یہ چڑھاوا نہ لے آؤ، اس دن تک نئی فصل کی روٹی یا بھنا ہوا اناج یا ہری بالیں ہرگز نہ کھانا۔ تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت ہمیشہ یہی آئین رہے گا، اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے گننا شروع کرنا، جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا۔ تب تم خداوند کے لیے نذر کی نئی قربانی گزراننا۔ تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے 2/2 حصہ کے وزن کے میدا کے 2 گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا۔ وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداوند کے لیے پہلے پھل ٹھہریں، اور ان گردوں کے ساتھ ہی تم 7 یکسالہ بے عیب برے اور 1 بچڑا اور 2 مینڈے لانا، تاکہ وہ اپنی اپنی نذر کی قربانی اور تپاون کے ساتھ خداوند کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر گزرانے جائیں، اور خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہریں۔ اور تم خطا کی قربانی کے لیے 1 بکرا اور سلامتی کے ذبیحہ کے لیے 2 یکسالہ نر برے چڑھانا، اور کاہن ان کو پہلے پھل کے دونوں گردوں کے ساتھ لے کر ان دونوں بروں سمیت ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے۔ وہ خداوند کے لیے مقدس اور کاہن کا حصہ ٹھہریں، اور تم عین اسی دن اعلان کر دینا، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کو کونے کونے تک پورا نہ کاٹنا، اور نہ اپنی فصل کی گری پڑی بالوں کو جمع کرنا، بلکہ ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو، اس میں یادگاری کے لیے نرسنگے پھونکے جائیں اور مقدس مجمع ہو۔ تم اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے، جس میں
خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے، وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے، اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ تم کسی طرح کا کام مت کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اسی 7ویں مہینے کی 14ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک خداوند کے لیے عید خیام ہوگی۔ پہلے دن مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ تم 7ویں دن برابر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ 8ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اور پھر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ وہ خاص مجمع ہے، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ یہ خداوند کی مقررہ عیدیں ہیں، جن میں تم مقدس مجمعوں کا اعلان کرنا، تاکہ خداوند کے حضور آتشین قربانی اور سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور ذبیحہ اور تپاون ہر ایک اپنے اپنے معین دن میں گزرانا جائے، ماں سوائے ان کے خداوند کے سبتوں کو ماننا اور اپنے ہدیوں اور منتوں اور رضا کی قربانیوں کو جو تم خداوند کے حضور لاتے ہو گزراننا۔ اور 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو 7 دن تک خداوند کی عید ماننا۔ پہلا دن خاص آرام کا ہو، اور 8واں دن بھی خاص آرام ہی کا ہو۔ سو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بید مجنو لینا، اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا۔ اور تم ہر سال خداوند کے لیے 7 روز تک یہ عید مانا کرنا۔ تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا کہ تم 7ویں مہینے اس عید کو مانو۔ 7 روز تک برابر تم سیابانوں میں رہنا۔ جتنے اسرائیل کی نسل کے ہیں سب کے سب سیابانوں میں رہیں، تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لا رہا تھا تو میں نے ان کو سیابانوں میں ٹکایا تھا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو خداوند کی مقررہ عیدیں بتا دیں۔ اخبار 24واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کو حکم کر کہ وہ تیرے پاس زیتون کا کوٹ کر نکالا ہوا خالص تیل روشنی کے لیے لائیں، تاکہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے۔ ہارون اسے شہادت کے پردہ کے باہر خیمہ اجتماع میں شام سے صبح تک خداوند کے حضور کرینہ سے رکھا کرے۔ تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا۔ وہ ہمیشہ ان چراغوں کو ترتیب سے پاک شمعدان پر خداوند کے حضور رکھا کرے۔ اور تو میدہ لے کر 12 گردے پکانا، ہر ایک گردہ میں ایفا کے 2/3 حصہ کے برابر میدہ ہو، اور تو ان کو 2 کتاریں کر کے ہر کتار میں 6 روٹیاں پاک میز پر خداوند کے حضور رکھنا، اور تو ہر ایک کتار پر خالص لبان رکھنا، تاکہ وہ روٹی پر یادگاری
یعنی خداوند کے حضور آتشین قربانی کے طور پر ہو۔ وہ سدا ہر سبت کے روز ان کو خداوند کے حضور ترتیب دیا کرے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی جانب سے ایک دائمی عہد ہے۔ اور یہ روٹیاں ہارون اور اس کے بیٹوں کی ہوں گی۔ وہ ان کو کسی پاک جگہ میں کھائیں، کیونکہ وہ ایک جاویدانی آئین کے مطابق خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے ہارون کے لیے نہایت پاک ہیں۔ اور ایک اسرائیلی عورت کا بیٹا جس کا باپ مصری تھا، اسرائیلیوں کے بیچ چلا گیا، اور وہ اسرائیلی عورت کا بیٹا اور ایک اسرائیلی لشکرگاہ میں آپس میں مار پیٹ کرنے لگے، اور اسرائیلی عورت کے بیٹے نے پاک نام پر کفر بکا اور لعنت۔ تب لوگ اسے موسیٰ کے پاس لے گئے۔ اس کی ماں کا نام سلومیت تھا، جو دبری کی بیٹی تھی، جو دان کے قبیلہ کا تھا، اور انہوں نے اسے حوالات میں ڈال دیا تاکہ خداوند کی جانب سے اس بات کا فیصلہ ان پر ظاہر کیا جائے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس لعنت کرنے والے کو لشکرگاہ کے باہر نکال کر لے جا، اور جتنوں نے اسے لعنت کرتے سنا، وہ سب اپنے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھیں، اور ساری جماعت اسے سنسار کرے۔ اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جو کوئی اپنے خدا پر لعنت کرے، اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، اور وہ جو خداوند کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے۔ ساری جماعت اسے قطعی سنسار کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی۔ جب وہ پاک نام پر کفر بکے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اور جو کوئی کسی آدمی کو مار ڈالے، وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اور جو کوئی کسی چوپائے کو مار ڈالے، وہ اس کا معاوضہ جان کے بدلے جان دے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے ہمسایہ کو عیب دار بنا دے، تو جیسا اس نے کیا ویسا ہی اس سے کیا جائے، یعنی عضو توڑنے کے بدلے عضو توڑنا ہو، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور دانت کے بدلے دانت۔ جیسا عیب اس نے دوسرے آدمی سے پیدا کر دیا ہے، ویسا ہی اس میں بھی کر دیا جائے۔ الغرض جو کوئی کسی چوپائے کو مار ڈالے، وہ اس کا معاوضہ دے، پر انسان کا قتل جان سے مارا جائے۔ تم ایک ہی طرح کا قانون دیسی اور پردیسی دونوں کے لیے رکھنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور موسیٰ نے یہ بنی اسرائیل کو بتایا۔ پس وہ اس لعنت کرنے والے کو نکال کر لشکرگاہ کے باہر لے گئے اور اسے سنسار کر دیا۔ سو بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ اخبار 25واں باب۔ اور خداوند نے کوہ سینا پر موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ، تو اس کی زمین بھی خداوند کے لیے سبت کو مانے۔ تو اپنے کھیت کو 6 برس بونا، اور اپنے انگورستان کو 6 برس چھانٹنا، اور اس کا پھل جمع کرنا، لیکن 7ویں سال زمین کے لیے خالص آرام کا سبت ہو۔ یہ سبت خداوند کے لیے ہو۔ اس میں تو نہ اپنے کھیت کو بونا اور نہ اپنے انگورستان کو چھانٹنا، اور نہ اپنی خودرو فصل کو کاٹنا، اور نہ اپنی بے چھٹی تاکوں کے انگوروں کو توڑنا۔ یہ زمین کے لیے خالص آرام کا سال ہو۔ اور زمین کا یہ سبت تیرے اور تیرے غلاموں اور تیری لونڈیوں اور مزدوروں اور ان پردیسیوں کے لیے
جو تیرے ساتھ رہتے ہیں تمہاری خوراک کا باعث ہوگا، اور اس کی ساری پیداوار تیرے چوپایوں اور تیرے ملک کے اور جانوروں کے لیے خریش ٹھہرے گی۔ اور تو برسوں کے 7 سبتوں کو یعنی 7 گنا 7 سال گن لینا، اور تیرے حساب سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کل 49 سال ہوں گے۔ تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے پھکوانا۔ تم کفارہ کے روز اپنے سارے ملک میں یہ نرسنگا پھونکوانا، اور تم 50ویں برس کو مقدس جاننا، اور تم ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا۔ یہ تمہارے لیے یوبلی ہو، اس میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک ہو، اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے۔ وہ 50واں برس تمہارے لیے یوبلی ہو۔ تم اس میں کچھ نہ بونا اور نہ اسے جو اپنے آپ پیدا ہو جائے کاٹنا، اور نہ بے چھٹی تاکوں کا انگور جمع کرنا، کیونکہ وہ سال جبلی ہوگا، سو وہ تمہارے لیے مقدس ٹھہرے۔ تم اس کی پیداوار کو کھیت سے لے کر کھانا۔ اس سال جبلی میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے۔ اور اگر تو اپنے ہمسایہ کے ہاتھ کچھ بیچے یا اپنے ہمسایہ سے کچھ خریدے تو تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا۔ یوبلی کے بعد جتنے برس گزرے ہوں ان کے شمار کے موافق تو اپنے ہمسایہ سے اسے خریدنا، اور وہ اسے فصل کے برسوں کے شمار کے مطابق تیرے ہاتھ بیچے۔ جتنے زیادہ برس ہوں اتنے ہی دام زیادہ کرنا، اور جتنے کم برس ہوں اتنی ہی اس کی قیمت گھٹانا، کیونکہ برسوں کے شمار کے موافق وہ ان کی فصل تیرے ہاتھ بیچتا ہے۔ اور تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا، بلکہ تو اپنے خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو تم میری میراث پر عمل کرنا، اور میرے حکموں کو ماننا اور ان پر چلنا، تو تم اس ملک میں امن کے ساتھ بسے رہو گے، اور زمین پھیلے گی اور تم پیٹ بھر کر کھاؤ گے، اور وہاں امن کے ساتھ رہا کرو گے۔ اور اگر تم کو خیال ہو کہ ہم 7ویں برس کیا کھائیں گے، کیونکہ دیکھو ہم کو نہ تو بونا ہے اور نہ اپنی پیداوار کو جمع کرنا ہے، تو میں 6 ہی برس ایسی برکت تم پر نازل کروں گا کہ 3 سال کے لیے کافی غلہ پیدا ہو جائے گا۔ اور 8ویں برس پھر جوتنا بونا اور پچھلا غلہ کھاتے رہنا، بلکہ جب تک 9ویں سال کے بوئے ہوئے کی فصل نہ کاٹ لو اس وقت تک وہی پچھلا غلہ کھاتے رہو گے۔ اور زمین ہمیشہ کے لیے بیچی نہ جائے، کیونکہ زمین میری ہے، اور تم میرے مسافر اور مہمان ہو، بلکہ تم اپنی ملکیت کے ملک میں ہر جگہ زمین کو چھڑا لینے دینا۔ اور اگر تمہارا بھائی مفلس ہو جائے اور اپنی ملکیت کا کچھ حصہ بیچ ڈالے، تو جو اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ آ کر اس کو جسے اس کے بھائی نے بیچ ڈالا ہے چھڑا لے۔ اور اگر اس آدمی کا کوئی نہ ہو جو اسے چھڑائے اور وہ خود مالدار ہو جائے اور اس کے چھڑانے کے لیے اس کے پاس کافی ہو، تو وہ فروخت کے بعد کے برسوں کو گن کر باقی دام اس کو جس کے ہاتھ زمین بیچی ہے پھیر دے۔ تب وہ پھر اپنی ملکیت کا مالک ہو جائے۔ لیکن اگر اس میں اتنا مقدور نہ ہو کہ اپنی زمین واپس کرا لے،
तो जो कुछ उसने बेच डाला है वो साले युबली तक खरीदार के हाथ में रहे, और साले युबली में छूट जाए। तब ये आदमी अपनी मलकियत का फिर मालिक हो जाए। और अगर कोई शख्स रहने के ऐसे मकान को बेचे जो किसी फसीलदार शहर में हो, तो वो उसके बिक जाने के बाद साल भर के अंदर अंदर उसे छुड़ा सकेगा, यानी पूरे 1 साल तक वो उसे छुड़ाने का हकदार रहेगा। और अगर वो पूरे 1 साल की मयाद के अंदर छुड़ाया ना जाए, तो उस फसीलदार शहर के मकान पर खरीदार का नस्ल दर नस्ल दायमी कब्जा हो जाए, और वो साले युबली में भी ना छूटे। लेकिन जिन देहात के गिर्द कोई फसील नहीं, उनके मकानों का हिसाब मुल्क के खेतों की तरह होगा। वो छुड़ाए भी जा सकेंगे और साले युबली में वो छूट भी जाएंगे। तो भी लावियों के जो शहर में लावी अपनी मलकियत के शहरों के मकानों को चाहे किसी वक्त छुड़ा लें, और अगर कोई दूसरा लावी उनको छुड़ा ले, तो वो मकान जो बेचा गया, तो वो उसकी मलकियत का शहर दोनों साले युबली में छूट जाएं, क्योंकि जो मकान लावियों के शहरों में हैं, वही बनी इस्राएल के दरमियान लावियों की मलकियत हैं। पर उनके शहरों के नवाही खेत नहीं बिक सकते, क्योंकि वो उनकी दायमी मलकियत हैं। और अगर तेरा कोई भाई मुफलिस हो जाए और वो तेरे सामने तंगदस्त हो, तो तू उसे संभालना। वो परदेसी और मुसाफिर की तरह तेरे साथ रहे। तू उससे सूद या नफा मत लेना, बल्कि अपने खुदा का खौफ रखना, ताकि तेरा भाई तेरे साथ जिंदगी बसर कर सके। तू अपना रुपया उसे सूद पर मत देना, और अपना खाना भी उसे नफा के ख्याल से ना देना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो तुमको इसलिए मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया कि मुल्के कैनान तुमको दूं और तुम्हारा खुदा ठहरूं। और अगर तेरा कोई भाई तेरे सामने ऐसा मुफलिस हो जाए कि अपने को तेरे हाथ बेच डाले, तो तू उससे गुलाम की मानंद खिदमत ना लेना, बल्कि वो मजदूर और मुसाफिर की मानंद तेरे साथ रहे और साले युबली तक तेरी खिदमत करे। उसके बाद वो बाल बच्चों समेत तेरे पास से चला जाए और अपने घराने के पास और अपने बाप दादा की मलकियत की जगह को लौट जाए, इसलिए कि वो मेरे खादिम हैं, जिनको मैं मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया हूँ। वो गुलामों की तरह बेचे ना जाएं। तू उन पर सख्ती से हुक्मरानी ना करना, बल्कि अपने खुदा से डरते रहना। और तेरे जो गुलाम और तेरी जो लौंडियां हों, वो उन कौमों में से हों जो तुम्हारे चौगिर्द रहती हैं। उन्हीं में से तुम गुलाम और लौंडियां खरीदा करना। मां सवाए इनके उन परदेसियों के लड़के बालों में से भी जो तुम में बूदोबाश करते हैं, और उनके घरानों में से जो तुम्हारे मुल्क में पैदा हुए और तुम्हारे साथ हैं, तुम खरीदा करना, और वो तुम्हारी ही मलकियत होंगे, और तुम उनको मिरास के तौर पर अपनी औलाद के नाम कर देना, कि वो उनकी मौरूसी मलकियत हों। इनमें से तुम हमेशा अपने लिए गुलाम लिया करना, लेकिन बनी इस्राएल जो तुम्हारे भाई हैं, उनमें से किसी पर तुम सख्ती से हुक्मरानी ना करना। और अगर कोई परदेसी या मुसाफिर जो तेरे साथ हो दौलतमंद हो जाए, और तेरा भाई उसके सामने मुफलिस होकर अपने आप को उस परदेसी या मुसाफिर या परदेसी के खानदान के किसी आदमी के हाथ
बेच डाले तो बिक जाने के बाद वो छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसे छुड़ा सकता है, या उसका चचा या ताऊ या उसका चचा या ताऊ का बेटा या उसके खानदान का कोई और आदमी जो उसका करीबी रिश्तेदार हो, वो उसको छुड़ा सकता है। या अगर वो मालदार हो जाए तो वो अपना फिदिया देकर छूट सकता है। वो अपने खरीदार के साथ अपने को फरोख्त कर देने के साल से लेकर साले जुबली तक हिसाब करे, और उसके बिकने की कीमत बरसों की तादाद के मुताबिक हो, यानी उसका हिसाब मजदूर के अय्याम की तरह उसके साथ होगा। अगर युबली के अभी बहुत से बरस बाकी हों, तो जितने रुपयों में वो खरीदा गया था, उनमें से अपने छूटने की कीमत इतने ही बरसों के हिसाब के मुताबिक फेर दे। और अगर साले जुबली के थोड़े बरस रह गए हों, तो वो उसके साथ हिसाब करे और अपने छूटने की कीमत उतने ही बरसों के मुताबिक उसे फेर दे। और वो उस मजदूर की तरह अपने आका के साथ रहे, जिसकी उजरत साल बसाल ठहराई जाती हो, और उसका आका उस पर तुम्हारे सामने सख्ती से हुकूमत ना करने पाए। और अगर वो इन तरीकों से छुड़ाया ना जाए, तो साले जुबली में बाल बच्चों समेत छूट जाए, क्योंकि बनी इस्राएल मेरे लिए खादिम हैं। वो मेरे खादिम हैं, जिनको मैं मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया हूँ। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। अहबार 26वां बाब। तुम अपने लिए बुत ना बनाना, और ना कोई तराशी हुई मूरत या लाट अपने लिए खड़ी करना, और ना अपने मुल्क में कोई शबीदार पत्थर रखना कि उसे सिजदा करो, इसलिए कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। तुम मेरे शब्दों को मानना और मेरे मकदस की ताजीम करना। मैं खुदावंद हूँ। अगर तुम मेरी शरीयत पर चलो और मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो, तो मैं तुम्हारे लिए बर वक्त मींह बरसाऊंगा, और जमीन से अनाज पैदा होगा, और मैदान के दरख्त फलेंगे, यहाँ तक कि अंगूर जमा करने के वक्त तक तुम दावते रहोगे, और जोतने बोने के वक्त तक अंगूर जमा करोगे, और पेट भर अपनी रोटी खाया करोगे, और चैन से अपने मुल्क में बसे रहोगे। और मैं मुल्क में अमन बख्शूंगा, और तुम सोओगे, और तुमको कोई नहीं डराएगा। और मैं बुरे दरिंदों को मुल्क से नेस्त कर दूंगा, और तलवार तुम्हारे मुल्क में नहीं चलेगी, और तुम अपने दुश्मनों का पीछा करोगे, और वो तुम्हारे आगे आगे तलवार से मारे जाएंगे। और तुम्हारे 5 आदमी 100 को रेंग देंगे, और तुम्हारे 100 आदमी 10,000 को खदेड़ देंगे, और तुम्हारे दुश्मन तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम पर नजरे अनायत रखूंगा, और तुमको बरोमंद करूंगा और बढ़ाऊंगा, और जो मेरा अहद तुम्हारे साथ है उसे पूरा करूंगा। और तुम अरसा का जखीरा किया हुआ पुराना अनाज खाओगे, और नए के सबब से पुराने को निकाल बाहर करोगे। और मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान कायम रखूंगा, और मेरी रूह तुमसे नफरत ना करेगी। और मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा, और तुम्हारा खुदा हूँगा, और तुम मेरी कौम होगे। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो तुमको मुल्के मिस्र से इसीलिए निकाल कर ले आया कि तुम उनके गुलाम ना बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए की चोबें तोड़ डाली हैं, और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया। लेकिन अगर तुम मेरी ना सुनो
اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری شریعت کو ترک کرو اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو اور تم میرے سب حکموں پر عمل نہ کرو بلکہ میرے عہد کو توڑو، تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تپدق اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا، جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے اور تمہاری جان کو گھلا ڈالیں گے، اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا، کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے، اور میں خود بھی تمہارا مخالف ہو جاؤں گا، اور تم اپنے دشمنوں کے آگے شکست کھاؤ گے، اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے، اور جب کوئی تم کو ریگ دیتا بھی نہ ہوگا تب بھی تم بھاگو گے، اور اگر اتنی باتوں پر بھی تم میری نہ سنو تو میں تمہارے گناہوں کے باعث تم کو 7 گنی سزا اور دوں گا، اور میں تمہاری شہزوری کے فخر کو توڑ ڈالوں گا، اور تمہارے لیے آسمان کو لوہے کی طرح اور زمین کو پیتل کی مانند کر دوں گا، اور تمہاری قوت بے فائدہ صرف ہوگی، کیونکہ تمہاری زمین سے کچھ پیدا نہ ہوگا، اور میدان کے درخت پھلنے ہی کے نہیں، اور اگر تمہارا چلن میرے خلاف ہی رہے اور تم میرا کہا نہ مانو تو میں تمہارے گناہوں کے موافق تمہارے اوپر اور 7 گنی بلائیں لاؤں گا، جنگلی درندے تمہارے درمیان چھوڑ دوں گا جو تم کو بے اولاد کر دیں گے، اور تمہارے چوپایوں کو نیست کر دیں گے اور تمہارا شمار گھٹا دیں گے، اور تمہاری سڑکیں سونی پڑ جائیں گی۔ اور اگر ان باتوں پر بھی تم میرے لیے نہ سدھرو بلکہ میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں بھی تمہارے خلاف چلوں گا، اور میں آپ ہی تمہارے گناہوں کے لیے تم کو اور 7 گنا ماروں گا، اور تم پر ایک ایسی تلوار چلاؤں گا جو عہد شکنی کا پورا پورا انتقام لے لے گی، اور جب تم اپنے شہروں کے اندر جا جا کر اکٹھے ہو جاؤ تو میں وبا کو تمہارے درمیان بھیجوں گا، اور تم غنیم کے ہاتھ میں سونپ دیے جاؤ گے، اور جب میں تمہاری روٹی کا سلسلہ توڑ دوں گا تو 10 عورتیں ایک ہی تنور میں تمہاری روٹی پکائیں گی، اور تمہاری ان روٹیوں کو تول تول کر دیتی جائیں گی، اور تم کھاتے جاؤ گے پر سیر نہ ہوگے۔ اور اگر تم ان سب باتوں پر بھی میری نہ سنو اور میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں اپنے غضب میں تمہارے برخلاف چلوں گا، اور تمہارے گناہوں کے باعث تم کو 7 گنی سزا بھی دوں گا، اور تم کو اپنے بیٹوں کا گوشت اور اپنی بیٹیوں کا گوشت کھانا پڑے گا، اور میں تمہاری پرستش کے بلند مقاموں کو ڈھا دوں گا، اور تمہاری سورج کی مورتیوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور تمہاری لاشیں تمہارے شکستہ بتوں پر ڈال دوں گا، اور میری روح کو تم سے نفرت ہو جائے گی، اور میں تمہارے شہروں کو ویران کر ڈالوں گا، اور تمہارے مقدسوں کو اجاڑ بنا دوں گا، اور تمہاری خوشنودی شیرین کی لپیٹ کو میں سونگھنے کا بھی نہیں، اور میں ملک کو سونا کر دوں گا، اور تمہارے دشمن جو وہاں رہتے ہیں اس بات سے حیران ہوں گے، اور میں تم کو غیر قوموں میں پراگندہ کر دوں گا، اور تمہارے پیچھے پیچھے تلوار کھینچے رہوں گا، اور تمہارا ملک سونا ہو جائے گا، اور تمہارے شہر ویرانہ بن جائیں گے، اور یہ زمین جب تک ویران رہے گی اور تم دشمنوں کے ملک میں رہو گے تب تک وہ اپنے سبت منائے گی، تب ہی اس زمین کو آرام بھی ملے گا،
اور وہ اپنے سبت بھی منانے پائے گی۔ یہ جب تک ویران رہے گی تب ہی تک آرام بھی کرے گی، جو اسے کبھی تمہارے سبتوں میں جب تم اس میں رہتے تھے نصیب نہیں ہوا تھا۔ اور جو تم میں سے بچ جائیں گے وہ اپنے دشمنوں کے ملکوں میں ہوں گے، ان کے دل کے اندر میں بے ہمتی پیدا کر دوں گا، اور اڑتی ہوئی پتی کی آواز ان کو کھدیڑ دے گی، اور وہ ایسے بھاگیں گے جیسے کوئی تلوار سے بھاگتا ہو، اور حالانکہ کوئی پیچھا بھی نہ کرتا ہوگا، تو بھی وہ گر گر پڑیں گے، اور وہ تلوار کے خوف سے ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا جائیں گے، باوجود کہ کوئی کھدیڑتا نہ ہوگا، اور تم کو اپنے دشمنوں کے مقابلہ کی تاب نہ ہوگی، اور تم غیر قوموں کے درمیان پراگندہ ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے، اور تمہارے دشمنوں کی زمین تم کو کھا جائے گی، اور تم میں سے جو باقی بچیں گے وہ اپنی بدکاری کے سبب سے تمہارے دشمنوں کے ملکوں میں گھلتے رہیں گے، اور اپنے باپ دادا کی بدکاری کے سبب سے بھی وہ انہی کی طرح گھلتے جائیں گے۔ تب وہ اپنی اور اپنے باپ دادا کی اس بدکاری کا اقرار کریں گے کہ انہوں نے مجھ سے خلاف ورزی کر کے میری حکم عدولی کی، اور یہ بھی مان لیں گے کہ چونکہ وہ میرے خلاف چلے تھے اس لیے میں بھی ان کا مخالف ہوا، اور ان کو ان کے دشمنوں کے ملک میں لا چھوڑا۔ اگر اس وقت ان کا مختون دل عاجز بن جائے اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کریں، تب میں اپنا عہد جو یعقوب کے ساتھ تھا یاد کروں گا، اور جو عہد میں نے اسحاق کے ساتھ اور جو عہد میں نے ابراہیم کے ساتھ باندھا تھا ان کو بھی یاد کروں گا، اور اس ملک کو یاد کروں گا، اور وہ زمین بھی ان سے چھوٹ کر جب تک ان کی غیر حاضری میں سونی پڑی رہے گی تب تک اپنے سبتوں کو منائے گی، اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کر لیں گے، اسی سبب سے کہ انہوں نے میرے حکموں کو ترک کیا تھا، اور ان کی روحوں کو میری شریعت سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس پر بھی جب وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں ہوں گے تو میں ان کو ایسا ترک نہیں کروں گا، اور نہ مجھے ان سے ایسی نفرت ہوگی کہ میں ان کو بالکل فنا کر دوں گا، اور میرا جو عہد ان کے ساتھ ہے اسے توڑ دوں، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، بلکہ میں ان کی خاطر ان کے باپ دادا کے عہد کو یاد کروں گا، جن کو میں غیر قوموں کی آنکھوں کے سامنے ملک مصر سے نکال کر لایا، تاکہ میں ان کا خدا ٹھہروں۔ میں خداوند ہوں۔ یہ وہ شریعت اور احکام اور قوانین ہیں جو خداوند نے کوہ سینا پر اپنے اور بنی اسرائیل کے درمیان موسیٰ کی معرفت مقرر کیے۔ احبار 27واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب کوئی شخص اپنی منت پوری کرنے لگے تو منت کے آدمی تیرے قیمت ٹھہرانے کے موافق خداوند کے ہوں گے۔ تو 20 برس کی عمر سے لے کر 60 برس کی عمر تک کے مرد کے لیے تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مقدس کی مسکال کے حساب سے چاندی کی 50 مسکال ہوں، اور اگر وہ عورت ہو تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت 30 مسکال ہو، اور اگر کوئی 5 برس سے لے کر 20 برس تک کی عمر کا ہو تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مرد کے لیے 20 مسکال اور عورت کے لیے 10 مسکال ہوں۔ پر اگر عمر 1 مہینے سے لے کر 5 برس تک کی ہو تو لڑکے کے لیے چاندی کی 5 مسکال اور لڑکی کے لیے چاندی کی 3 مسکال ٹھہرائی جائیں، اور اگر 60 برس سے لے کر اوپر کی عمر ہو
तो मर्द के लिए 15 मिस्काल और औरत के लिए 10 मिस्काल मुकर्रर हों। पर अगर कोई तेरे अंदाजा की निस्बत कम मकदूर रखता हो, तो वो काहिन के सामने हाजिर किया जाए, और काहिन उसकी कीमत ठहराए, यानी जिस शख्स ने मन्नत मानी है उसकी जैसी हैसियत हो वैसी ही कीमत काहिन उसके लिए ठहराए। और अगर वो मन्नत किसी ऐसे जानवर की है जिसकी कुर्बानी लोग खुदावंद के हजूर चढ़ाया करते हैं, तो जो जानवर कोई खुदावंद की नजर करे वो पाक ठहरेगा। वो उसे फिर किसी तरह ना बदले, ना तो अच्छे के इवज बुरा दे और ना बुरे के इवज अच्छा दे। और अगर वो किसी हाल में एक जानवर के बदले दूसरा जानवर दे, तो वो और उसका बदल दोनों पाक ठहरेंगे। और अगर वो कोई नापाक जानवर हो जिसकी कुर्बानी खुदावंद के हजूर नहीं गुजरानते, तो वो उसे काहिन के सामने खड़ा करे, और खा वो अच्छा हो या बुरा, काहिन उसकी कीमत ठहराए। और ए काहिन, जो कुछ तू उसका दाम ठहराएगा वही रहेगा। और अगर वो चाहे कि उसका फिदिया देकर उसे छुड़ाए, तो जो कीमत तूने ठहराई है उसमें उसका 5वां हिस्सा वो और मिलाकर दे। और अगर कोई अपने घर को मुकद्दस करार दे ताकि वो खुदावंद के लिए पाक हो, तो खा वो अच्छा हो या बुरा, काहिन उसकी कीमत ठहराए, और जो कुछ वो ठहराए वही उसकी कीमत रहेगी। और जिसने उस घर को मुकद्दस करार दिया है, अगर वो चाहे कि घर का फिदिया देकर उसे छुड़ाए, तो तेरी ठहराई हुई कीमत में उसका 5वां हिस्सा और मिलाकर दे, तब वो घर उसी का रहेगा। और अगर कोई शख्स अपने मौरूसी खेत का कोई हिस्सा खुदावंद के लिए मुकद्दस करार दे, तो तू कीमत का अंदाजा करते वक्त ये देखना कि उसमें कितना बीज बोया जाएगा। जितनी जमीन में एक होमर के वजन के बराबर जो बो सके, उसकी कीमत चांदी की 50 मिस्काल हो। अगर कोई साले जुबली से अपने खेत मुकद्दस करार दे, तो उसकी कीमत जो तू ठहराए वही रहेगी। पर अगर वो साले जुबली के बाद अपने खेत को मुकद्दस करार दे, तो जितने बरस दूसरे साले जुबली के बाकी हों, उन्हीं के मुताबिक काहिन उनके लिए रुपए का हिसाब करे, और जितना हिसाब में आए उतना तेरी ठहराई हुई कीमत से कम किया जाए। और अगर वो जिसने उस खेत को मुकद्दस करार दिया है ये चाहे कि उसका फिदिया देकर उसे छुड़ाए, तो वो तेरी ठहराई हुई कीमत का 5वां हिस्सा उसके साथ और मिलाकर दे, तो वो खेत उसी का रहेगा। और अगर वो उस खेत का फिदिया देकर उसे ना छुड़ाए या किसी दूसरे शख्स के हाथ उसे बेच दे, तो फिर वो खेत कभी ना छुड़ाया जाए, बल्कि वो खेत जब साले जुबली में छूटे तो वक्फ किए हुए खेत की तरह वो खुदावंद के लिए मुकद्दस होगा और काहिन की मलकियत ठहरेगा। और अगर कोई शख्स किसी खरीदे हुए खेत को जो उसका मौरूसी नहीं खुदावंद के लिए मुकद्दस करार दे, तो काहिन जितने बरस दूसरे साले जुबली के बाकी हों, उनके मुताबिक तेरी ठहराई हुई कीमत का हिसाब उसके लिए करे, और वो उसी दिन तेरी ठहराई हुई कीमत को खुदावंद के लिए मुकद्दस जानकर दे दे। और साले जुबली में वो खेत उसी को वापस हो जाए जिससे वो खरीदा गया था और जिसकी वो मलकियत है। और तेरे सारे कीमत के अंदाजे मकदस की मिस्काल के हिसाब से हों, और एक मिस्काल 20 जेरा का हो। परफक्त चौपायों के पहलोठों को जो पहलोठे होने की वजह से खुदावंद के ठहर चुके हैं, कोई शख्स
मुकद्दस करार ना दे, खा वो बैल हो या भेड़ बकरी। वो तो खुदावंद ही का है, पर अगर वो किसी नापाक जानवर का पहलोठा हो, तो वो शख्स तेरी ठहराई हुई कीमत का 5वां हिस्सा कीमत में और मिलाकर उसका फिदिया दे और उसे छुड़ाए। और अगर उसका फिदिया ना दिया जाए, तो वो तेरी ठहराई हुई कीमत पर बेचा जाए। तो भी कोई मखसूस की हुई चीज जिसे कोई शख्स अपने सारे माल में से खुदावंद के लिए मखसूस करे, खा वो उसका आदमी या जानवर या मौरूसी जमीन हो, बेची ना जाए और ना उसका फिदिया दिया जाए। हर एक मखसूस की हुई चीज खुदावंद के लिए नहायत पाक है। अगर आदमियों में से कोई मखसूस किया जाए, तो उसका फिदिया ना दिया जाए, वो जरूर जान से मारा जाए। और जमीन की पैदावार की सारी दैयकी, खा वो जमीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावंद की है और खुदावंद के लिए पाक है। और अगर कोई अपनी दैयकी में से कुछ छुड़ाना चाहे, तो वो उसका 5वां हिस्सा उसमें और मिलाकर उसे छुड़ाए। और गाय बैल और भेड़ बकरी या जो जानवर चरवाहे की लाठी के नीचे से गुजरता हो, उनकी दैयकी यानी 10 पीछे एक एक जानवर खुदावंद के लिए पाक ठहरे। कोई उसकी देखभाल ना करे कि वो अच्छा है या बुरा है, और ना उसे बदले। और अगर कहीं कोई उसे बदले, तो वो असल और बदल दोनों के दोनों मुकद्दस ठहरें, और उसका फिदिया भी ना दिया जाए। जो अहकाम खुदावंद ने कोहे सीना पर बनी इस्राएल के लिए मूसा को दिए, वो यही हैं।